हम्म। क्या हो गया? So, good evening, everyone, and welcome you all once again to our today's webinar on the very important topic of the new labor code. And I'm CA Asha Sharma, one of the co-founder of this GWCAA, which is Gurugram Women Chartered Accountant Association. And on behalf of our whole organization, I extend a very warm welcome to all our esteemed participants, members, and our distinguished speaker today, CA Ankush Jain ji. Welcome, sir. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. And for those who are joining us for the first time, a brief introduction to our organization. So we call it as GWCAA, which is a dynamic professional forum dedicated to strengthening and supporting women chartered accountants, both professionally as well as personally. Through the structured learning initiatives and the meaningful networkings, knowledge exchange programs, and the leadership platforms, we try to help the women chartered accountants to grow bigger. And our theme, Unnati Manch, a platform for progress, embodies our vision of creating a very enabling environment, I would say, for all the female chartered accountants. This our online learning platform is although open to all, whoever wants to learn and practice anything, they can attend our session. It's very much open. But I would say and would like to inform at this stage that this uh, whole organization is managed by all the women chartered accountants only. So friends, now coming to today's topic, this new labor code. हम लोगों ने इसको सुना है तो काफी चेंजेस इसमें आए हैं एंड वी वुड डेफिनेटली वुड लर्न मोर फ्रॉम द स्पीकर टुडे एंड आज के हमारे स्पीकर सी अंकुश जैन जी उनका ब्रीफ प्रोफाइल आई वुड लाइक टू गिव this he is a qualified chartered accountant with extensive experience in the HR recruitment service payroll management and the labor law compliances and he also holds significant exposure to the investigations led by SFIU, ED, and other investigative bodies, especially in relation to the assignments under the ILFS group and the other large corporate structures. And with his expertise in the labor law litigation, he advised to many big corporates. तो आई एम श्योर अंकुश जी की बिग कॉर्पोरेट्स के साथ साथ जो एसएमई फर्म्स हैं एसएमई कंपनीज हैं उनको भी आप उनके लिए भी हमें कुछ फूड फॉर थॉट दे के जाएंगे आज कि क्या बिल्कुल उनकी पॉलिसी में चेंजेस आने वाले हैं कितना उनको ध्यान रखना है क्योंकि एक चीज यहाँ पे ये है कि जो भी स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे उतना उनका वेरी सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट होता भी नहीं है कई जगहों पर एग्जैक्टली। तो व्हाट दे शुड टेक केयर ऑफ तो उनको भी कवर कीजिएगा एंड व्हाट वी एज ए चार्टेड अकाउंटेंट कहाँ पे अपना एक्सपोजर और प्रोफेशनली एक्सपैंड कर सकते हैं उसे भी बताइएगा तो विद Sure. दिस आई अगेन वेलकम यू एंड नाउ ओवर टू Thank you, ma'am. Thanks to GWCAA teams. Thanks to providing me opportunity to interact all of you on the new hot topic of the new labor codes. Is the topic is the changes, challenges, and search opportunities. So I will interact all of you accordingly and give you the elaborate you regarding the what is the changes in the new labor codes, what is the challenges are required to the MSMEs or the corporates, and what are the CA opportunities for all of us. So first of all, I thanks to the President C. Namita Goyal ji, Secretary C. Asa Sharma ji, Treasurer C. Hemlata Seni ji, and other team members कि आपने मुझे इस लाइक समझा और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया to interact all of you on the new labor codes. So now we are starting this. So I am hello. Can I mute other members?
please mute other members so that you can take the benefits of the my voice if it is. Hello, can you hear me? Okay. So now Yes. I'm sharing my screen. This is the changes are required as per the government of India notified the new labor codes on the 21st November 2025. Just I'm asking one questions. All are able to hear? Okay, perfect. Perfect. So the government of India notified new labor codes on the 21st November 2025. सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि यार जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं इसमें क्या सारे एक्ट्स कवर हो गए या कुछ सेंट्रलाइज एक्ट्स कवर हुए हैं, स्टेट एक्ट्स अभी भी पेंडिंग है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्लेरिफिकेशन ये है कि यहाँ पे जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं, चार न्यू लेबर कोड जो हैं उसमें ओनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो ही कवर किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट यहाँ पे कवर नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफाई किया है अपने जो सेंट्रल एक्ट्स थे, 29 जो सेंट्रल एक्ट्स थे उनको समराइज करते हुए चार लेबर कोड्स में डिफाइन कर दिया गया। स्टेट्स का जो पार्ट था, चाहे वो प्रोफेशनल टैक्स हो, लेबर वेलफेयर फंड हो, सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट टैक्स हो, वो एग्जिस्टिंग में है, वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि यार ये जो न्यू लेबर कोड्स आगे क्या इमीडिएट इफेक्टिव है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें एक जनरल प्रोविजंस के थ्रू, तो जब भी कोई एक्ट बनता है विद इमीडिएट इफेक्ट्स एप्लीकेबल हो जाता है, बट प्रैक्टिकली उसको एप्लीकेबल होने के लिए उसके रूल्स आते हैं। रूल्स आम पब्लिक स्टेक होल्डर्स के लिए ओपन किए जाते हैं फॉर जनरल कमेंट्स। जनरल कमेंट्स होने के बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है, देन वो कम्स टू इफेक्टिव। सो यहाँ पर पोजीशन आज अगर हम देखें लेबर कोड्स की तो ये है कि एक्ट्स आ चुके हैं, 21 नवंबर से एप्लीकेबल हो चुके हैं, ड्राफ्ट रूल्स मार्केट में अवेलेबल है स्टेक होल्डर्स के, आम पब्लिक की कमेंट्स के लिए। दे आर ओपन फॉर 45 days फॉर द स्टेक होल्डर्स कमेंट्स। जैसे ही उसका पीरियड ओवर हो जाएगा वो फाइनलाइज हो जाएंगे, और वंस इट गेट फाइनलाइज वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो न्यू लेबर कोड्स का इफेक्टिव डेट मार्केट में आने वाला है एज पर द क्लियरिफिकेशंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा। सेकेंड चीज अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं क्लियर ऑफ द डाउट्स आप लोगों का कर दूं, तो उसमें यहाँ पर हमारे सामने ये है कि ये जो पीरियड है नवंबर से लेके मार्च तक का हमारे सामने जो पीरियड है, दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड्स। इस ट्रांजिशनल पीरियड में आपको क्या करना है कि जो भी पॉलिसीज में चेंजेस होना है, जो भी वेजेस स्ट्रक्चर रिवाइज होना है वो हमें लोग को करना है। क्या न्यू अपॉइंटमेंट लेटर्स हम लोग को इश्यू करें, दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड्स। तो ट्रांजिशनल पीरियड्स में एज सी है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करें कि उनको क्या चेंजेस अपने यहाँ पे पेरोल स्ट्रक्चर में करना है, उनको क्या चेंजेस अपने पॉलिसीज में, एचआर पॉलिसीज में करना है, या क्या चेंजेस उनको अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स में करना है। दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड्स। इस ट्रांजिशनल पीरियड में हम लोगों को ओल्ड से न्यू में रिस्ट्रक्चरिंग करना है। Now I am forwarding my voice to the delivery on the new labor codes कि government of India notified 4 new labor codes. This comprises the codes on wages 2019, industrial relationship code 2020, code on social security 2020, occupational safety health and working conditions code 2020। ये चार न्यू लेबर कोड्स हैं जिसमें 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज जो एक्ट्स है उसको समराइज कर दिया गया है। आगे अगर हम बात करें कि इन चार के अंदर कौन से कोड में कौन से एक्ट समराइज हो गए हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोड ऑन वेजेस 2019, दिस इज कंप्राइजेस 4 एग्जिस्टिंग एक्ट्स: पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट्स, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट्स। नाउ कम्स टू इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड। इसमें 3 एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज एक्ट्स हैं जिनको कवर कर दिया गया है: ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। नाउ दिस इज द मेजर एक्ट्स की सोशल सिक्योरिटी जो कोड आया है उसके अंदर 9 एग्जिस्टिंग एक्ट्स है जिनको समराइज कर दिया गया है।
दिस इज द ईपीएफ, ईएसआईसी, एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मटर्निटी बेनिफिट्स, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, साइन वर्कर्स, बिल्डिंग बीओसीडब्ल्यू और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। नाउ लास्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस एक्ट। इसके अंदर 13 ऐसे एक्ट्स हैं जिनको समराइज कर दिया गया। लाइक मैं बात करूं अगर फैक्ट्री एक्ट की, माइन एक्ट्स की, बीओसीडब्ल्यू की, प्लांटेशन की, आईएसएमडब्ल्यू की, तो ऐसे 13 एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं जिनको समराइज कर दिया गया है और उनकी जगह पे न्यू लेबर कोड्स डिफाइन कर दिया गया है। अगर आगे हम बात करूं कि की चेंजेस क्या होने वाले हैं मेरे केस में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हाइलाइट्स की बात करेंगे इन डिटेल में। डिटेल में आगे मैं लूंगा और उसके पहले मैं हाइलाइट्स की यहाँ पर आपसे बात करूंगा कि हाइलाइट्स क्या है। तो हाइलाइट्स अगर हम सबसे पहले बात करें कि क्या मेजर चेंजेस हैं न्यू लेबर कोड्स के समराइज फॉर्म में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यहाँ चीज है, अभी तक बिग कॉर्पोरेट्स और जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से वो अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करते थे फॉर्मली किसी भी एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करवाने के लिए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करवाने के लिए, किसी भी एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाने के लिए, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि कंप्लीटली आपको अपॉइंटमेंट लेटर सबके लिए इश्यू करना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, कॉर्पोरेट हो, नॉन कॉर्पोरेट हो, डेली वर्कर हो, कैजुअल वर्कर हो, परमानेंट वर्कर हो, सभी के लिए अपॉइंटमेंट कंपल्सरी हो गया अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करना। नेक्स्ट आता है सिंगल रजिस्ट्रेशन। अगर हमें बात करें तो हमारे यहाँ पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट चलता था कि पीएफ में रजिस्ट्रेशन अलग है, ईएसआईसी में अलग है, बीओसीडब्ल्यू में अलग है, सीएलआरए में अलग है। डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस करने के कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पर सारे एक्स को जैसे हमने समराइज कर दिया है वैसे ही सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू। यहाँ पर आपका इजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा और कंप्लाइंसेस का बर्डन है वो वेरी लेस हो जाएगा। एक नेक्स्ट चीज ये है। अगला आता है कि मैंडेटरी एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस। अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं तो कॉर्पोरेट में जनरली सैलरी का डिसबर्समेंट मंथ एंड पे या नेक्स्ट 5 to 7 डेज में हो जाता है। बट अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि 7 दिन में भी पेमेंट हो गया, 15 दिन में भी हो गया, मंथ एंड में भी हो गया, डिपेंड्स ऑन द फंड अवेलेबिलिटी। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अभी सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान देते हुए उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आपको टाइमली पेमेंट करना कंपलसरी है। टाइम लिमिट यहाँ पर दी गई है कि अगर आप वीकली पेमेंट है तो वीकेंड में करो, अगर आपका मंथ प्रोविजन सिस्टम है तो आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको पेमेंट करना है। इसमें सबसे बड़ा हिट जो यहाँ पर है वो दे दिया गया एफ एंड एफ के केस में। फुल एंड फाइनल अगर आपको पेमेंट करना है किसी भी एम्प्लॉयज का तो T+2 डेज में उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। अभी तक क्या होता था, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, जो कंपनीज की पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंगली 30 डेज के अंदर या 45 डेज के अंदर या मैक्सिमम 60 डेज के अंदर पेमेंट होता था। अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको एफ एंड एफ के केस में T+2 डेज पॉलिसी फॉलो करनी है। मतलब जिस दिन एम्प्लॉय छोड़ के चला गया उसके 2 दिन के अंदर उसका पेमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि T+2 डेज में, T+1 डेज में अमाउंट डीमेट में क्रेडिट हो जाना चाहिए या बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। सेम वही कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे फॉलो किया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हिट जो एम्प्लॉयर को लगने वाला है ये इसी केस में लगने वाला है कि यहाँ पर उनको फंड अपना प्रॉपर बजट मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट वन इज द नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस्ड। क्या होता था कि अभी अलग अलग स्टेट्स, अगर हम बात करें इंडिया में 28 स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज है सबका अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज है मिनिमम वेजेस का। सब अपना अपना कॉन्सेप्ट चलता था, किसी का 6 मंथली, किसी का एनुअली, तो वो सब लोग उसी के हिसाब से। अभी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया गया कि अगर ये सेंट्रलाइज एक्ट आ गया, सेंट्रलाइज लेबर कोड्स हमने इंप्लीमेंट कर दिया है तो फ्लोर वेज जो यहाँ पर एक रेट डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली सभी को फॉलो करना है। वही पॉलिसीज और मिनिमम रेट उसको गवर्नमेंट स्टेट एक्ट को फॉलो करनी पड़ेगी। उससे बिलो किसी की अलाउड नहीं होगी, उससे हायर अगर आप रखते हैं दैट इज वैलिड, उससे बिलो किसी का भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटीज कवरेज पहले किसी एस्टेब्लिशमेंट्स में कवर था, नॉन कवर था, नोटिफाइड एरिया का कॉन्सेप्ट था ईएसआईसी के केस में। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वहां पर उनके एप्लीकेबल ही नहीं था। अभी उन्होंने इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर बोल दिया गया कि सभी पर एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल सभी पर एप्लीकेबल है। इवन दो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या जो भी डिलीवरी पार्टनर्स है, स्विगी, जोमेटो, उनके जो डिलीवरी बॉयज है उनको भी सोशल सिक्योरिटी उन्होंने यहाँ पे कवर कर दिया है। जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, जो सोशल मीडिया वर्कर्स है, उनकी भी सोशल सिक्योरिटीज की बात यहाँ पे की गई है कि उनको भी पीएफ और ईएसआईसी में कवरेज रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एनुअल हेल्थ चेकअप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। एनुअल हेल्थ चेकअप के केस में क्या कर दिया गया कि अगर आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिसकी एज 40 ईयर्स एंड अबाउ है, कंपल्सरी आपको एनुअल हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका करवाना होगा। मैडम एक
एक बार मैं हाइलाइट्स पे बात करूं, फिर मैं आपका इस पे भी आऊंगा कि ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, चैलेंजेस क्या है हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज क्या है सीए के लिए। एक बार मैं हाइलाइट्स कवर कर दूं, इन्हीं हाँ, हाइलाइट्स पे भी आप मैं अपना कंप्लीट कर लो। ये तो आप सबसे लास्ट में टेकअप कर लेंगे इन सब चीजों को। नहीं, आप मैं पहले एक कंप्लीट मोटा मोटी एक कर। ओवरव्यू देता जाऊंगा, लास्ट में हम लोग सारे जो हमारे ऑडियंस है उनके क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे। बीच बीच में जैसे मेरा कवर हो जाएगा उसके बाद में एक ओवरव्यू दे दूंगा कि इसमें हमारे लिए चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है सीए के लिए। हाँ, तो एनुअल हेल्थ चेकअप का जो कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर आपके पास तरह से। एग्जिस्टिंग में कोई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी एज 40 इयर्स प्लस है, आपको कंपलसरी उसका एनुअल हेल्थ चेकअप करना होगा, उसकी एनुअल हेल्थ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाना होगा। नेक्स्ट राइट। अगर हम बात, वैसे यस एनी, यस आशा मैम आप कुछ बोल रहे थे? हेलो। नेक्स्ट इज द पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अक्रॉस। अभी क्या होता था कि मैंने एक एम्प्लॉयमेंट क्या काम किया, एम्प्लॉयर क्या काम किया, बाद में जॉब चेंज कर दिया, एम्प्लॉय ने थर्ड क्या ज्वाइन किया, फिर फोर्थ क्या ज्वाइन किया, मल्टीपल मेंबर आईडीज यहाँ पर जनरेट हो जाती थी। और इवन दो वो ऑटो ट्रांसफर नहीं होती थी, ऑटो क्लेम सेटलमेंट नहीं होता था, डिपार्टमेंट ने उसको क्लेरिफाई किया, गवर्नमेंट ने उसको सिंपलाइज किया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स जो आपके हैं उसकी पोर्टेबिलिटी कर देंगे थ्रू आधार। आधार से उसको लिंक कर देंगे और आप कितने भी एम्प्लॉयमेंट चेंज कर दो, कितने किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, आपका ऑटोमेटिक पोर्टेबिलिटी हो जाएगा और मेंबर्स आपका कंटिन्यू होता जाएगा, ऑटो क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द वुमेन्स को यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट्स दिया गया है कि दे आर नाउ अलाउड इन द टू शिफ्ट वर्क इन द नाइट सिस्टम। नाइट शिफ्ट आपको अलाउ कर दिया गया है कि नाइट शिफ्ट में भी आप अलाउ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी, सब्जेक्ट टू आपका सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या है, अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अगर आपकी कंप्लीट्स हैं तो वुमेन एम्प्लॉयज को नाइट में अलाउ कर दिया गया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहले भी था हमारा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो बात करता था 25,000 और उसके केस में। अभी यहाँ पर बोला गया है कि अगर मेरा कोई डिग्री है, सेम डिग्री सेम क्वालिफिकेशंस और सेम एक्सपीरियंस के बेस पे है, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, मुझे सेम वेजेस सबके लिए देनी पड़ेगी। अगर मेरा 5 साल का कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस है और सेम डेजिग्नेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। मेल मेन वुमेन और जेंडर के बेसिस, ट्रांसजेंडर के बेसिस पे ऑल आर इक्वल, जेंडर कॉन्सेप्ट यहाँ पर चला गया है। अभी सबके लिए इक्वल कॉन्सेप्ट उन्होंने लागू कर दिया गया। नेक्स्ट आपको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स पर यहाँ पर आ चुका। नेक्स्ट इज द मेंबर्स, वुमन एम्प्लॉइज को, वुमन एम्प्लॉइज जो है उसको ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में भी यहाँ पर पहचान दिया गया है कि उनको वुमेन्स को ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में रखना कंपलसरी है। अब सब मैं यहाँ पर बात करूं चैलेंजेस की, हमारा जो यहाँ पर चलो एक समराइज फॉर्मेट में मेरा हो गया। समराइज फॉर्मेट की बात अगर मैं बात करूँ कि चैलेंजेस क्या है, अगर हम एज ए सीए अपने क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सबसे पहले ये चीज है कि क्लाइंट्स को बजट मेंटेन करना पड़ेगा अपनी यहाँ पे, क्योंकि इसको सैलरी का टाइमली पेमेंट करना कंपलसरी है। 7 तारीख को, नेक्स्ट 7 तारीख को उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, T+2 डेज में उसका F&F क्लियर हो जाना चाहिए। वीकली अगर उसका सिस्टम है, कॉन्ट्रेक्टर्स उसने एम्प्लॉय हायर किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हायर किए हैं, तो टाइमली पेमेंट उसको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले बजट का उसको यहाँ पे चैलेंज आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द वेजेस का डेफिनेशन यहाँ पर चेंज हो गया है। वेजेस का डेफिनेशन क्या है मैं आगे कवर करूंगा। तो उसको यहाँ पर अपना वेज स्ट्रक्चर रिवाइज करना पड़ेगा। वेज स्ट्रक्चर रिवाइज करने के लिए उसको आपकी अपनी सीए की एडवाइस लेनी पड़ेगी या जो कंसल्टेंट्स है उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी। देख अगर वेज स्ट्रक्चर मेरा चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे न्यू अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करने हैं। एग्जिस्टिंग में मेरे जो भी एम्प्लॉयमेंट्स है, एम्प्लॉइज हैं, उनके भी मुझे न्यू अपॉइंटमेंट लेटर्स उनको रिलीज करने हैं, और जो न्यू एम्प्लॉइज मैं आपको हायर करने वाला हूं उनके भी न्यू अपॉइंटमेंट लेटर मुझे रिवाइज चेंजेस करके देने हैं। तो यहाँ पर उनके लिए वही चैलेंज है, ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है 3 मंथ्स का हमारा जो ट्रांजिशनल पीरियड है, इसी ट्रांजिशनल पीरियड में हम लोगों को या अपने क्लाइंट्स को, हमारे क्लाइंट्स को उसको रिवाइज करना है, सैलरी स्ट्रक्चर को उसको रिवाइज करना है, अपॉइंटमेंट लेटर्स को। तो यहाँ पर हमारे सामने यही अपॉर्चुनिटीज है कि हम हमारे क्लाइंट्स को पिच करें कि सर आपका सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज होना है एज पर न्यू लेबर कोड्स, तो हम लोग उसको आपको करवा के देते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन, जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कवर करके एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू, तो हम आपका उसको चेंज करके देते हैं। आपके जो भी न्यू स्ट्रक्चर, न्यू वेज के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेटर्स जो भी होने हैं हम लोग वो करके देते हैं। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर सीए।
कि हम लोग यहाँ पर एज ए क्लाइंट्स पिच कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एसएमई पॉइंट्स, एमएसएमई क्लाइंट्स की, तो क्या उनको भी सबको करना कंपलसरी होगा? अगर यहाँ पर 10 या 20 जो रेलिवेंट सेक्स की सीलिंग लिमिट है, उसके यहाँ पर सबको कंपलसरी कवर करना कंपलसरी है। सबको, सब एम्प्लॉइज यहाँ पे, सब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है एमएसएमई वेंडर्स को भी कवर करने की, एमएसएमई क्लाइंट्स को भी कवर करने की, क्योंकि गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कवरेज काफी ज्यादा हो गया है, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट करना उस पर स्टार्ट कर दिया है, तो एमएसएमईज को भी यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेरी कि इम्पैक्ट्स क्या होगा, अगर मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो मेरा इम्पैक्ट्स क्या होने वाला है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस है, मैं एक लास्ट में आपके सारे समराइज कर दूंगा कि क्वेश्चंस का जैसे इन्होंने मुझे बोला है कि प्लीज एक्सप्लेन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज स्टेटस एंड इन केस एनी कंपनी इज कन्वर्टिंग सैलरी। अगर कोई भी एम्प्लॉई 58 ईयर्स की एज कंप्लीट कर रहा है, तो नॉर्मल एम्प्लॉय जो यहाँ पर पीएफ का हमारा होता है कि 58 ईयर्स की एज में उसको फाइल करना पड़ता है कि मैं एज ए रिटायरमेंट की एज कंप्लीट कर रहा हूँ, तो 60 एंड अबाउ ईयर्स की एज में वो पीएफ के लिए कंप्लाइंस कंपलसरी नहीं है। आप उसको कॉन्ट्रेक्चुअल कन्वर्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल अगर कन्वर्ट करते हो उस एम्प्लॉय को, तो उसका आप पीएफ डिडक्ट कर सकते हो चाहो तो, और नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। 60 एंड अबाउ ईयर्स के केस में, उससे बिलो के केस में कवर करना कंपलसरी है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, सबसे पहले मैं इम्पैक्ट्स की बात करूं कि इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू लेबर कोड्स और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं लूं, तो सबसे पहले सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस होने वाला है। अभी मल्टीपल एक्ट्स में मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस थे, मल्टीपल कंप्लायंसेस हमें करने पड़ते थे। अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट का बोलना यह है, क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट की साइड से ये है कि हम सिंगल रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, सिंगल रिटर्न करने वाले हैं, उसी रिटर्न में आपका मंथली कंप्लायंसेस कवर हो जाएगा। तो एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस होने वाला है। वेज की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, 50% का फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया गया है, तो उसकी वजह से ग्रेचुटी और लिव एंकेसमेंट्स का अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है। थोड़ा सा हिट यहाँ पर ये मारेगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर। अगर हायरिंग की बात करें हम, तो हायरिंग में यहाँ पर एम्प्लॉयज को हायर करना उनके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि फिक्स टर्म एम्प्लॉय का एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है कि अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल या फिक्स टर्म एम्प्लॉयज अगर आप हायर कर रहे हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, आप कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाइए, कॉन्ट्रैक्टर्स को उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप हायर कीजिए, उनका डिफाइन कीजिए कि क्या स्ट्रक्चर होगा, उनका वेज स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर हायर करना उनके लिए इजी हो जाएगा। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कर सेफ्टी एंड वर्क वेलफेयर, वुमन एम्प्लॉयज को अगर हम नाइट शिफ्ट में हायर कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, उनके सीसीटीवी कैमरास प्रोटोकॉल्स, उनका हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो एम्प्लॉयर्स का यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है कंप्लाइंसेस बर्डन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। अगर हम एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, तो यहाँ पर हायर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो जाएंगे, क्योंकि वेजेस की डेफिनेशन अगर यहाँ पर चेंज हो गई, तो मेरा ग्रेचुटी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इन फ्यूचर में मैं जब भी लेफ्ट करूंगा, अगर मैं परमानेंट एम्प्लॉयज का मेरा कॉन्सेप्ट है, तो 5 साल का कॉन्सेप्ट मेरा वहां पे चलता है, तो 5 साल के बाद वो ग्रेचुटी का अमाउंट मुझे इंक्रीज होकर मिलने वाला है। ईएसआईसी में भी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, 21,000 यहाँ पर अब जो केस आएगा वो 50% वाले केस पे कवर होगा। पीएफ की अगर मैं बात करूं, तो पीएफ भी अगर वॉलेंटरी अगर कंपनी इंक्रीज करना चाहे, तो उस जो अमाउंट 50% वाला फर्स्ट स्लेब है, उस पर यहाँ पर उसका पीएफ अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। बट डिपार्टमेंट ने आगे उसको फर्दर क्लेरिफाई किया कि नहीं, अगर आपको जो स्टेचुरी सीलिंग लिमिट है 15,000 रुपए की, उस पर ही 12% करना कंपल्सरी, 1,800 रुपए आपको मिनिमम करना पड़ेगा। उससे अगर आप करते हो तो वॉलेंटरली आप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मोर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ ले ऑफ्स, अगर पहले यहाँ पर इजीली था, कंपनी किसी को भी हायर एंड फायर कर देती थी, अभी यहाँ पर इजीली नहीं है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट डिस्टेंस 300 एंड मोर है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इजीली ले ऑफ करना इजी नहीं है अभी एम्प्लॉयर्स के लिए। बेटर कवरेज फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटीज में आपको इंक्रीज कर दिया गया है कि जो हमारे गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, डेली वर्कर्स है, उनको यहाँ पर कवरेज हो जाएगा। प्रोराटा ग्रेचुटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है, जिसको हम 1 ईयर के लिए हायर कर रहे हैं, या फिक्स टर्म्स के लिए हायर कर रहे हैं, 6 मंथ्स के लिए हायर कर रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए हायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एम्प्लॉइज को भी ग्रेचुटी का बेनिफिट्स दिया गया है। अभी यहाँ पर मैं चैलेंजेस की बात करूं, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो मेरा आने वाला है, वो ग्रेचुटी के केस में ही आने वाला है। एमएसएमईज को जो एफटी जो एम्प्लॉइज हायर कर रहे हो आप
कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय जो आप हायर कर रहे हो उसके केस में ग्रेचुटी का प्रोविजन है कि अगर 1 ईयर का मिनिमम 1 ईयर सर्व करना कंपलसरी है, और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डिसाइन डिफाइन किया है एज पर आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट, उसके अंदर आपको ग्रेचुटी का प्रोविजनिंग करना कंपलसरी है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारे सीए के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है, तो कि ग्रेचुटी के क्या प्रोविजनिंग होना है, फाइनेंशियल्स में उसका कैसे डिस्क्लोजर होना है, एमएसएमईज के केस में या कॉर्पोरेट्स के केस में हम लोगों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि एफटीज के केस में ग्रेचुटी जो पहले नहीं था वो ग्रेचुटीज का बेनिफिट अब दे दिया गया है, तो हमारे लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज खुलकर सामने आती है। प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशंस की अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशंस क्या है एम्प्लॉयर के लिए, सबसे पहला है कि रिव्यू वेज स्ट्रक्चर। आपको अपना जो वेज स्ट्रक्चर है, जो न्यू डेफिनेशन है, उसके हिसाब से उसको इंक्रीज उसको चेंज करना पड़ेगा। वेज स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट्स को अपने जो एफ एंड एफ के वर्क फ्लोज हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। एफ एंड एफ पहले आप जो 30 डेज 60 डेज 45 डेज में करते थे वो अब आपको नहीं चलेगा, T+2 डेज में आपको कवर करना पड़ेगा। अपने रजिस्ट्रेशन आपको अपडेट करवाने पड़ेंगे। अलायन पोर्टल एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल रिटर्न का कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट लाने वाला है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन अपडेट करने पड़ेंगे श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू। रिकॉर्ड्स कुछ एमएसएमईज हैं, छोटे जो एस्टेब्लिशमेंट्स है वो अभी भी मेंटेन नहीं कर पाते थे, आगे भी थोड़ा सा उनको लिबराइज रहेगा, बट जो कॉर्पोरेट्स है, लार्ज कॉर्पोरेट्स है, एमएनसीज है, उनको अपने रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना, रजिस्टर्स मेंटेन करना कंपलसरी है। सैलरी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, वेज रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट के जो भी आपके यहाँ पर इंस्पेक्शंस और नोटिस होने वाले हैं, असेसमेंट्स होने वाले हैं, अब वो फिजिकली ना होके वो वर्चुअली होंगे। आपको सारे नोटिस आपको नोटिस ऑनलाइन आने वाले हैं और ऑनलाइन ही आपको रिप्लाई फाइल करना है, तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है। विदाउट रिकॉर्ड्स आपको अलाउड नहीं होगा। सेफ्टी कंप्लायंसेस, आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। 40+ ईयर्स के केस में जो उन्होंने एनुअल हेल्थ चेकअप का कॉन्सेप्ट डाला है वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर भी आपको ध्यान देना है। दीज आर द प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशंस फॉर एम्प्लॉयर्स। अभी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, आप लोग के जो भी क्वेश्चन है उसको कवर कर लेता हूँ, तो फिर आगे हम उसी हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले था व्हाट आर द इंपॉर्टेंट की कंसिडरेशंस इन दिस रिगार्ड फॉर ऑडिट ऑफ एमएसएमई एंटिटीज, नॉन लिस्टेड एंटिटीज। आशा मैम का जो क्वेश्चन था मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट का जो हमारा गाइडेंस नोट अभी 4 दिन पहले आया है उसमें भी उन्होंने बोला है कि हमारे जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होने हैं कंपनीज पे, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट हो, डिपेंड्स ऑन द सिनारियो की किसका क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग को पहले यहाँ पर चेक करना है कि क्या वो चेंज अब जो भी चेंजेस है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, जो कब से कंपनी करने वाली है, उसका फाइनेंशियल्स में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या मतलब एसी इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द ऑडिट्स क्या है, मतलब जिनके फाइनेंशियल्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, अगर क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यूज अगर जाता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे Q1 Q2 Q3 की, उसमें पहले यहाँ पर इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट आया था ग्रेचुटी के केस में कि ग्रेचुटी के लिए आपको Q3 और Q4 के फाइनेंशियल्स में प्रॉपर हिट को प्रॉपर प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी। जो आपका पास्ट अकरिंग कोर्स है, पास्ट कोस्ट से ग्रेचुटी की, वो आपको फाइनेंशियल्स में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो Q3 और Q4 के फाइनेंशियल्स में ग्रेचुटी का लिव एंगेजमेंट्स का विशेष ध्यान देने की हम लोग को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि ग्रेचुटी का प्रॉपर प्रोविजनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। जो वेज स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो एफ एंड एफ के प्रोविजंस बनेंगे, लिव के प्रोविजंस बनेंगे, अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर ओके है कि या नहीं है, कंपनी ने उनको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स में उसको कैसे हम लोग को चेंजेस करना है या रिपोर्टिंग करनी है, वो यहाँ पर हमें लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी है, तो थोड़ा सा रिस्क पैटर्न भी है कि हम लोग जो चेंजेस हैं कंपनी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी और हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उसमें डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये हमारा हो गया था 58 ईयर्स वाला। व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन द न्यू लेबर कोड्स। तो यहाँ पर आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस लेबर कोड्स में, मतलब पीएफ के लिए क्या कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, ईएसआईसी के केस में क्या कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, तो ये पॉइंट आपका नेक्स्ट में कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या इंप्लीमेंट हो गया है, जो क्वेश्चन यहाँ पर था कि क्या इंप्लीमेंट हो गया है, तो ड्राफ्ट रूल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ड्राफ्ट रूल्स आम पब्लिक के स्टेक होल्डर्स के लिए ओपन है, उसको अपना कमेंट सबको देना है।
कमेंट्स देने के बाद 45 डेज का जो पीरियड्स होता है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट उसको फाइनलाइज कर देगी, और फाइनलाइज करने के बाद वो जो भी इफेक्टिव डेट होगी, मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल 2026 होगी, तब से कोड इम्प्लाई हो जाएगा और उसको करना कंपलसरी है। और अभी तक का ये जो पीरियड है, दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड। इसमें हम लोगों को हमारे जो एमएसएमई क्लाइंट्स है, हमारे जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, एमएसएमई क्लाइंट्स है, उन सबका हम लोग को चेंजेस करवाना है कि क्या क्या चेंजेस उनको अपने एस्टेब्लिशमेंट्स में करना है। दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड। नेक्स्ट आई एम कंटिन्यूइंग ऑन द टॉपिक्स की अब हम बात करें, यहाँ पर चार हमारे सामने कोड्स आने वाले हैं। सबसे पहले जो बड़ा पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए है या कंपनीज को जो हिट करता है, दैट इज द सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें 9 एग्जिस्टिंग एक्ट्स हमारे कवर होते हैं, चाहे वो पीएफ हो, ईएसआईसी हो, ग्रेचुटी हो, मैटरनिटी हो, अदर कंप्लाइंसेस कवर होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की। जो यहाँ पर अभी क्वेश्चन था कि सर एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग में जो कॉन्सेप्ट चलता था पीएफ रजिस्ट्रेशन के केस में, वो नोटिफाइड, वहां पर शेड्यूल एस्टेब्लिशमेंट्स का कॉन्सेप्ट चलता था। शेड्यूल एस्टेब्लिशमेंट्स मतलब फैक्ट्रीज अगर आपकी है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायरमेंट है, और अगर अदर एस्टेब्लिशमेंट्स है तो वहां पर वॉलेंट्री होता था। अगर आपके पास 20 और मोर एम्प्लॉइज हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। वही कंडीशंस आगे है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो वॉलेंट्री हमारे रजिस्ट्रेशन होते थे कि जिनका नंबर ऑफ एम्प्लॉय 20 से बिलो है, वो केस में अगर हमें रजिस्ट्रेशन लेना है तो हम कैसे करेंगे, तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन आप तब भी ले सकते थे और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन आप अभी भी ले सकते हो। केवल यहाँ पर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिमूव कर दिया गया है। ऑल आर इक्वल, मतलब चाहे वो फैक्ट्री हो, सोपेन एस्टेब्लिशमेंट्स हो, या किसी भी टाइप का एस्टेब्लिशमेंट्स हो, ऑल आर कवर्ड, ऑल आर इक्वल्स। सबके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है मोर देन 20 एम्प्लॉयमेंट के केस में। मैं अगर यहाँ पर बात करूं यहाँ ईएसआईसी के केस में, पहले तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट था पहले 10 और मोर एम्प्लॉइज के केस में कंपलसरी होता था रजिस्ट्रेशन, बिलो के केस में वॉलेंट्री था, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। वही सेम कॉन्सेप्ट आगे भी रहेगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 एंड अबाउ है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, बिलो के केस में आप वॉलेंट्री लिए। बट यहाँ पर उन्होंने एक आगे डाला कि अगर आपके पास यहाँ पर आपका जो काम है वो हजार्डियस है, रिस्क कैपेसिटी का है, तो सिंगल एम्प्लॉइज भी अगर आपके पास है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अभी एक जनरल जो मार्केट में हम लोगों को एज ए सीए हम लोग जो फेस कर रहे हैं, कि जो हमारे कलीग्स से सब लोग फेस कर रहे हैं, कि क्या होता है कि न्यू कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही फाइनेंशियल 2020 ऑनवर्ड्स आरओसी क्या करता है, उसी के साथ में एजाइल प्रो के थ्रू आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन, सीएसआईसी का रजिस्ट्रेशन, और पीटी, एलडब्ल्यू पीटी और बाकी सब कंप्लाइंस रजिस्ट्रेशन साथ में देता है। तो अब यहाँ पर चैलेंजेस हमारे सामने आता है, सर हमारे रजिस्ट्रेशन आ गया तो क्या हमें कंप्लाइंस करना कंपलसरी हो गया, हम कैसे करें उसको, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर उसको अगर हम बात करें कि हाँ, आरओसी ने 2020 के बाद से ही रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया है कि आप जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे साथ में आपको कंप्लाइंस रजिस्ट्रेशन आपको दे दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन देने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपके ऊपर कंप्लाइंसेस का बर्डन थोप दिया गया, आपको कंप्लाइंस करना उसी दिन से कंपलसरी है, नहीं। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ एक्सीड करती है तो आपको कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ एक्सीड नहीं करती है तो आप जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग चलिए। जैसे अगर मैं बात करूं ईएसआईसी के केस में, जैसे ही मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन मिल गया, मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, तो क्या मैं उसी दिन से कंप्लाइंस करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर आपको एक विंडो दी जाती है एक्सटेंड करने की, डोरमेट पीरियड एक्सटेंड करने की। जो ये जनरल प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं एज ए सीए सारे लोग, उसके लिए एक एडवाइजरी है कि जो वहां पर आपको एक डोरमेट पीरियड एक्सटेंड करने की विंडो दी जाती है। आप क्या करो, फर्स्ट 6 मंथ्स के केस में जब भी रजिस्ट्रेशन आपको दिया, फर्स्ट 6 मंथ्स वो एक डोरमेट पीरियड ऑटोमेटिक इनएक्टिव रहता है वो आपका रजिस्ट्रेशन। आप अगर वो फर्स्ट 6 मंथ्स आपको एक्सटेंड नहीं करना है, 6 मंथ्स के बाद वो आपको डोरमेट पीरियड वापस एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ 10 एंड अबाउ नहीं हुई है तो आपके पास कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्लायंसेस करने की, आप क्या करो उस डोरमेट पीरियड को एक्सटेंड कर दो। वहां पर ऑप्शन आता है कि वेदर इट इज एप्लीकेबल ऑन मी और नॉट, तो आप उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया है, क्लाइंट्स का एक्सटेंड करवा दिया है, तो वह उसके केस में आपको ईएसआईसी का कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर हमसे गलती हो गई है, हमने उसको एक्सटेंड नहीं किया है, तो ईएसआईसी का कोड नंबर एक्टिव हो जाता है और वो केस में हम लोगों को
रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो डिपार्टमेंट के नोटिस आना स्टार्ट हो गया है। वो लोग सीधा फाइनेंशियल्स टच करते हैं, फाइनेंशियल्स में कितनी सैलरी आपकी दिख रही है उसके बेसिस पे असेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। और अपने जो भी एमएसएमई क्लाइंट्स हैं या जिनको भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, जो भी स्टार्टअप्स हमारे हैं, उसके केस में हम लोग ध्यान दें कि अगर उसका एप्लीकेबल नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, तो हम लोग उस डोरमेट पीरियड को एक्सटेंड करें। पीएफ की अगर मैं बात करूं, पीएफ में जनरली वो एक्टिव नहीं होता है जब तक कि हम लॉगिन नहीं करते हैं। जब भी हम लॉगिन करेंगे, हमारे सामने वहां पे विंडो ओपन होती है कि वेदर इट इज कंपल्सरी एप्लीकेबल टू यू और यू वांट टू टेक अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो अगर मेरे पास 20 एंड अबाउ एम्प्लॉइज हैं, तो वो केस में मेरा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और अगर आपके पास वॉलंटरी है, तो आप जिस डेट से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, वॉलंटरी कवर करना चाहते हैं, तो वो एग्रीमेंट की डेट बताइए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में आपने एग्रीमेंट कब किस डेट से किया है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो पीएफ के केस में जनरली वो एप्लीकेबल नहीं होता, इनएक्टिव रहता है। फिर भी सेपर साइड में आपको क्या करना है, एक लेटर डिपार्टमेंट को प्रोसेस कर देना है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अस बिकॉज वी हैव नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर द एक्ट, वी हैव नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो दीज आर नॉट एप्लीकेबल ऑन अस। तो एक चैलेंजेस मार्केट में सबको आ रहे हैं। हम लोग को एज ए कंसल्टेंट, एज ए सीए, आप लोग जो एडवाइस करोगे अपने स्टार्टअप्स को, यही आपको एडवाइस करनी है कि पीएफ में कैसे डोरमेट एक्सटेंड करना है, ईएसआईसी में कैसे डोरमेट एक्सटेंड करना है, और अगर डोरमेट एक्सटेंड नहीं किया है, वॉलंटरी उसका एक्टिव हो गया है, तो उसमें कैसे उसको कंप्लाइंसेस करनी है। पीएफ और ईएसआईसी में पहले भी कॉन्सेप्ट चलता था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का, वॉलंटरी कवरेज का। वो कॉन्सेप्ट आगे भी कंटिन्यू है कि आप अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट बनाइए। एम्प्लॉय अगर एग्री करते हैं कि हाँ पीएफ डिडक्ट करवाने के लिए हम लोग एग्री हैं, तो वॉलंटरी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और उसको कंटिन्यू कर सकते हो। वो कॉन्सेप्ट आगे भी कंटिन्यू है और वही कॉन्सेप्ट ईएसआईसी में भी कंटिन्यू है। पहले यहाँ पर एक और हमारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती थी। एज सीए हम लोग बात करें, एज एडवाइस अगर हम बात करें, तो पहले हम लोग को सरेंडर करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता था कि सरेंडर कैसे करें। तो यहाँ पर आप वापस एग्रीमेंट कीजिए अपने एम्प्लॉयज के बीच में और पर्टिकुलर डेट डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर आपको किस डेट से आपको सरेंडर करना है लाइसेंस। आप वॉलंटरी कवर करना नहीं चाहते, तो हम लोग यहाँ पर उसको सरेंडर कर सकते हैं। अभी यहाँ तक कि केस में मैं चाहूंगा कि किसी के भी जो क्वेश्चंस हैं आप रेज कर सकते हैं, हम लोग उसको सोल्व कर देते हैं, देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ओवर टू ऑल ऑडियंस कि आपके जो भी क्वेश्चंस है यहाँ तक कि यू कैन रेज, आई विल गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? हेलो? ओके, सो नाउ आई एम प्रोसीडिंग, नो वन हैव देयर क्वेश्चंस। अभी यहाँ पर क्या है कि हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि ईएसआईसी में कॉन्सेप्ट चलता था नोटिफाइड एरिया का कॉन्सेप्ट। नोटिफाइड एरिया में क्या होता था, कुछ स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है। बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मैं बात करूँ तो ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है। गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, न्यू लेबर कोड्स में वो नोटिफाइड एरिया का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। नोटिफाइड एरिया का कॉन्सेप्ट खत्म करते हुए सभी के ऊपर ईएसआईसी कंपल्सरी एप्लीकेबल कर दिया। अगर आपके पास 10 एंड अबव एम्प्लॉइज हैं, तो वो केस में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर पहले क्या होता था, हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है या नर्सिंग होम्स है, तो उनके केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ईएसआईसी की उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स है या नर्सरी डिस्पेंसरी है या नर्सिंग होम्स है। अभी सबको कवर कर दिया गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो गया है, ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स के केस में कवर्ड है। तो हमारे सामने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आपके कोई भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स रन करते हैं या डिस्पेंसरी रन करते हैं या फिर कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि कवर्ड नहीं थे, अभी वो कवर्ड हैं, तो आप उनको कवर करवाइए, उनके रजिस्ट्रेशन लीजिए और उनके रजिस्ट्रेशन करके हम लोग यहाँ पर हमारा इंक्रीज कर सकते हैं रेवेन्यू। और किसी को वॉलेंटरली कवर करना है, जो अगर मैं बात करूं, अगर जो हमारे टेंडर्स के केस में होता था कि गवर्नमेंट के टेंडर अगर आपको लेना है तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन उसमें कंपलसरी कि आप पीएफ और ईएसआईसी डिडक्ट करो तो ही आपको आगे टेंडर का मिलता था और उस अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। तो वो यहाँ पर आगे भी कंटिन्यू है, आप उसमें भी टेंडर के प्रोसेस में अपने एम्प्लॉइज जो भी हैं आपके, उसको कवर करवा सकते हो। इफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी विद इन 6 months नोट फाइल फॉर डोरमेट ऑफ ईएसआईसी, नाउ व्हाट इज द रेमेडी? तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट 6 months जो हमारा पीरियड होता है दैट इज द डोरमेट पीरियड। वहां पर इनएक्टिव पोजीशंस में हमारा ईएसआईसी और पीएफ होता है। अगर हमने हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो वो डोरमेट पीरियड हमें आपको फर्दर 6 months एक्सटेंड करना है। अगर हमने डोरमेट पीरियड एक्सटेंड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट और सिस्टम मान लेता है कि आपके ऊपर ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो गया।
आपको कंप्लायंस करना कंपलसरी हो गया। अब अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया, बाय द वे नोटिस आता है, तो आपको डिपार्टमेंट को क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्रॉस नहीं थे, और मेरे जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी 20,000 एंड अबाउ है, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो केस में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है कि हम लोग उस डोरमेट पीरियड को एक्सटेंड करें। डोरमेट पीरियड एक्सटेंड नहीं किया है, ईएसआईसी एप्लीकेबल हो गया। अगर आपके पास स्टिल ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है, तो आप निल रिटर्न प्लीज कंपलसरी फाइल करें। निल रिटर्न फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट के नोटिस आने के चांसेस रेयर हो जाते हैं। Gratuity and leave encashment for the contractual employees on year-to-year base, and in case any company is converting salary employment or retiring employees on attending of age of 58 years to, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लीव की पॉलिसीज अगर मैं बात करूं तो पहले यहाँ पर हमारे सामने कॉन्सेप्ट चलता था जो एक्ट्स के हिसाब से है, 240 डेज मिनिमम अगर उसने सर्व किया है तो वहां पर उसको लीव मिलती थी। अभी उसको चेंज करते हुए उन्होंने 180 डेज कर दिया है कि अगर उसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट ईयर में मिनिमम 180 डेज सर्व किया है तो उसको 20 डेज पर वन लीव मिलेगी। मतलब उसको 18 डेज की लीव साल भर में देना कंपलसरी है। कैरी फॉरवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है या एंकेजमेंट्स का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, वो मेरा 30 डेज का अभी एज पर जो प्रोविजंस की मैं बात करूं न्यू लेबर कोड्स में, तो वो यहाँ पर कंटिन्यू है। और वो भी है जो मेरे मैनेजर बिलो मैनेजरियल कैटेगरी है, तो वो कैसे डिफाइन होंगे? जिनके वेजेस 18,000 रुपए या उससे कम है, देट आर द वर्कर्स, देट आर द वर्कर्स। तो वो उनके केस में लीव्स देना कंपलसरी है। मिनिमम 18 डेज की लीव आपको साल भर में देनी पड़ेगी। 30 डेज का एक एनहांस एंकेजमेंट का प्रोविजन है, 30 डेज से ऊपर जो भी लीव होगी वो एंकेज करनी पड़ेगी। और या कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो वो उनको करना कंपलसरी है। उससे अबाव के केस में क्या होगा? तो उनसे अबाव के केस में ये होगा कि आपको जो लीव पॉलिसी है, सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट है, जो लोकल आपका एक्ट है, उसको फॉलो करना कंपलसरी है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया स्टेट्स की, तो यहाँ पर 30 डेज का लीव 30 या 45 डेज का होता है। महाराष्ट्र में 45 डेज है, हरियाणा में 30 डेज का है, कहीं और, तो वो आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पर बात करें कि मैं परमानेंट एम्प्लॉयज के केस में पॉलिसी अलग रखूं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के केस में पॉलिसी अलग रखूं, तो हाँ हो सकती है। परमानेंट एम्प्लॉइज आपके ऑन रोल वाले एम्प्लॉइज हैं जिनकी लीव पॉलिसी, ग्रेचुटी पॉलिसी और जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो एक सेपरेट होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज आप जो हायर कर रहे हैं, आपका रिक्वायरमेंट है कि वो कॉन्ट्रेक्टर्स उसका कंप्लायंसेस करे। अगर वो कॉन्ट्रेक्टर उसका कंप्लायंसेस नहीं करता है तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की हो जाएगी। और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेरा अगर किसी एम्प्लॉयमेंट आज 58 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका है या 68 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका है, 60 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका है, बाद में उसको कन्वर्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीट कर देता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी पॉलिसी आपको फ्रेम करनी पड़ेगी जो कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी होगी। लाइक अगर आप उसको 1 ईयर का पीरियड आप दे रहे हो, तो 1 ईयर के पीरियड में भी आपको, अगर वो प्रॉपर सर्व करता है तो ग्रेचुटीज आपको देनी पड़ेगी, लीव एंकेजमेंट्स आपको देना पड़ेगा अगर उसने प्रॉपर सर्व किया है तो। दो पॉलिसीज आपकी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल की अलग हो सकती है, परमानेंट एम्प्लॉयज की अलग हो सकती है, बट एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना कंपलसरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर ग्रेचुटीज की मैं एक थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ फटाफट से कि ग्रेचुटीज के केस में क्या चेंजेस किया गया है। तो पहले हमारा काम में कॉन्सेप्ट चलता था परमानेंट एम्प्लॉयज का कॉन्सेप्ट, परमानेंट एम्प्लॉयज का कॉन्सेप्ट आज भी कंटिन्यू है। उसके ग्रेचुटीज के कोई चेंजेस उसमें नहीं हुआ है। ग्रेचुटी परमानेंट एम्प्लॉयज के केस में 5 ईयर्स के केस में ही कंपलसरी रहेगी। बिलो अगर 5 ईयर्स आपने सर्व किया है तो आपको ग्रेचुटी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, बट प्रोविजनिंग आपको करना पड़ेगा। जो इसमें न्यू लेबर कोड्स में सबसे बड़ा चेंजेज है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जो है उसको ग्रेचुटी का बेनिफिट्स दिया गया है। अगर मेरा ग्रेचुटी फिक्स टर्म एम्प्लॉयज में सर ले रहा हूँ, हायर कर रहा हूँ, ऐसे मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं जिन जो 1 ईयर तक अगर मेरे सर्व कर रहे हैं, तो मुझे उसको ग्रेचुटी देना यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा। तो फाइनेंशियल्स में मुझे उसका इम्पैक्ट देना है, उसकी प्रोविजनिंग करनी है। तो सबसे बड़ा जो चेंजेज है और सबसे बड़ी जो प्रोविजनिंग यहाँ पर करनी है फाइनेंशियल्स में, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के केस में प्रोविजनिंग करने की रिक्वायरमेंट है कि आपको ग्रेचुटीज का प्रोविजन यहाँ पर करना होगा। ग्रेचुटी में यहाँ पर यही चेंजेस है। बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि वर्किंग उसके कैसे होता था, 15/26 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय लास्ट वर्किंग लास्ट ड्रॉन सैलरी, वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन जो पहले होती थी वही आगे सेम कंटिन्यू है। बीओसी सेस की अगर मैं बात करूं, एक चेंजेस यहाँ पर बीओसी डब्ल्यू सेस में किया गया है।
बीओसी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के केस में क्या होता था कि आपका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, मल्टी मल्टी स्टोरीज बनाने का काम करता है, या फिर वो फैक्ट्री लगा रहा है, तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द कमिंसमेंट ऑफ द फैक्ट्री उस पर एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का एक 1% सेस का कॉन्सेप्ट था। तो वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का उसको रजिस्ट्रेशन लेना और उसको कंप्लाइंस करना कंपलसरी है। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ उसको फर्दर क्लेरिफाई किया गया है कि बीओसीडब्ल्यू किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अभी यहाँ पर एक इंक्लूडिंग की डेफिनेशन उन्होंने दी है कि इंटरनेट टावर्स आप जो लगा रहे हैं वो इंटरनेट टावर्स भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे और उन पर भी बीओसीडब्ल्यू सेस देना कंपलसरी है। एक्सक्लूडिंग डेफिनेशंस में उन्होंने दिया गया है कि यहाँ पर कौन से कवर नहीं होंगे। अगर आपके पास 10 और बिलो एम्प्लॉइज है, पिछले महीने में पिछले साल में अगर आपके पास बिलो 10 एम्प्लॉइज का कॉन्सेप्ट है, बिलो 10 एम्प्लॉइज अगर आपने हायर किए हैं तो उस पर बीओसीडब्ल्यू सेस नहीं लगेगा। अगर आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री कब बनती है, पहले हम उसको सिविल वर्क का काम होता है, उस पर एस्टेब्लिशमेंट्स खड़ा होता है, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर का काम होता है, देन उसके बाद वो फैक्ट्री बनती है। तो जब तक वो फैक्ट्री नहीं है तब तक बीओसीडब्ल्यू उस पर लगता है। फैक्ट्री बनने के बाद उस पर बीओसीडब्ल्यू की सेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फैक्ट्री यहाँ पर एक्सक्लूडिंग रहेगी। और अगर आप यहाँ पर कोई एक साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जो आपके इंडिविजुअल नेचर का है, जो आपके रेजिडेंशियल ओन पर्पज का है, और उसकी कॉस्ट जो है 50 लाख रुपए तक है, तो उसको भी बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, उसको सेस रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपकी जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर बीओसीडब्ल्यू सेस रखना कंपलसरी है। एक हमारा चेंजेस यहाँ पर ये हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय फॉर 11 मंथ्स बेसिस आर कवर्ड बाय एक्स। यहाँ फिक्स टर्म एम्प्लॉइज दैट मीन्स दैट मिनिमम 12 महीने का रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। अगर 12 महीने का हम लोग रखते हैं तो एक्ट के हिसाब से उसको लीव एनहांसमेंट, लीव एंकेजमेंट्स और ग्रेचुटी का प्रोविजन कंपलसरी है। बट यहाँ पे एक तोड़ निकल के आ रहा है कि अगर हम 11 महीने का ही प्रोविजन करें तो यहाँ के केस में एम्प्लॉइज हो सकता है कंप्लेन फाइल कर दे डिपार्टमेंट में कि नहीं ये ऐसा किया गया है कि ग्रेचुटी में मैं कवर नहीं करना चाहता, या ये मुझे ग्रेचुटी में कवर नहीं करना चाहते, इसलिए 11 मंथ्स का कॉन्सेप्ट दिया है। हाँ, इसका जरूर हम लोगों के पास ये साइड लाइन है कि हम 11 मंथ्स का एग्रीमेंट कर लें तो उसके केस में हम लोगों को ग्रेचुटी का प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ेगा, ग्रेचुटी नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है, बट ये एक सॉल्यूशन नहीं है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 11 मंथ्स का एग्रीमेंट करें और उसको ग्रेचुटी से स्किप करें, क्योंकि अगर कल को किसी एम्प्लॉय ने कंप्लेन फाइल कर दी कि इन्होंने मुझे ग्रेचुटी का बेनिफिट्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया है, तो फिर वो थोड़ा सा उल्टा हो सकता है। इसलिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा इसके लिए। हाँ, अगर हम बात करें एक सबसे बड़ा जो चेंजेस है वेजेस की, कि वेजेस की यहाँ पर डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। पहले कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट किसी भी प्रकार की वेजेस रख रहा था, बेसिक कुछ है, एचआरए कुछ है, कुछ और अलग अलाउंसेस कुछ है। तो यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया गया है कि आपका जो भी वेजेज होगा, जो भी सीटीसी है, उसका 50% आपको बेसिक, डीए और रिटर्निंग अलाउंसेस में रखना कंपलसरी है। इस अगर आपने मिनिमम 50% इसमें नहीं रखा और किसी अदर कंपोनेंट में रख दिया तो वो वापस यहाँ पर आपका एडबैक हो जाएगा। और अगर एडबैक हो गया तो आपको उस जो अमाउंट है उसी पर कंप्लाइंसेस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर बाय द वे मैं मान के चलूं कि मेरी 10 लाख रुपए की अगर किसी को मैंने सीटीसी दिया है, सीटीसी मतलब ऑल एमोनेंट्स मेरे उसमें कवर्ड है, तो मिनिमम उसका 5 लाख रुपए बेसिक डीए और रिटर्निंग अलाउंसेस में रखना कंपलसरी है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, 4 लाख रुपए रख दिए और 6 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग में रख दिए। अब एक्सक्लूडिंग में क्या क्या कवर होंगे, कुछ एक्सक्लूजन उन्होंने दिए हैं कि डिफाइन किए हैं कि आप जो 50 सेकेंड पार्ट जो है आपका 50% वाला, उसमें आप क्या क्या रख सकते हैं। तो बोनस हो गया, कोई भी फैसिलिटीज आप अगर उसको दे रहे हैं तो फैसिलिटीज होगी, पीएफ ईएसआईसी हो गया, कन्वेंस अलाउंसेज हो गया, एचआरए हो गया, कमीशन हो गया, तो वो आप उसमें रख सकते हो 50% वाले पार्ट में। बट अगर आपने जो 50% वाला पार्ट रख दिया और इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो अमाउंट है वो एक्सीड करता है बेसिक डीए और रिटर्निंग अलाउंसेस से, तो वो वापस आपका एडबैक हो जाएगा। आप यहाँ पर एक्सक्लूजन को हायर साइड नहीं रख सकते, मिनिमम आपको 50% बेसिक देना कंपलसरी है। और हमारा जो नया कैलकुलेशन होगा पीएफ का, ईएसआईसी का और ग्रेचुटी का, लिव एंकेजमेंट्स का, वो इस 50% फर्स्ट अमाउंट पे ही होगा। तो ग्रेचुटी का अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज होगा, ग्रेचुटी की लाइबिलिटीज यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यार पीएफ का अमाउंट मेरा चेंज हो जाएगा,
क्योंकि मैं पहले कुछ छोटा सा अमाउंट रखता था, 20% बेसिक या 25% बेसिक, और उसी पर ही पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिट करता था। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आप फर्दर क्लेरिफाई किया कि हाँ, अमाउंट आपका चेंज हो सकता है अगर आप वॉलेंटरली कवर करो तो। बट जो वेज की कोड की सीलिंग लिमिट है, वो सीलिंग लिमिट 15,000 रुपए है। 15,000 का 12% 1,800 रुपए होता है, वही आगे कंटिन्यू रहेगा। उससे ऊपर अगर आप वॉलेंटरली करना चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट 1,800 रुपए तो मिनिमम आपको करना कंपलसरी है। एक और डाउट मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो क्वेश्चंस के पहले ही, कि हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि यार 15,000 के ऊपर वेजेस मेरी है, तो मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं, उसको ईएसआईसी में कवर करूं ही ना करूं। तो मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि ईएसआईसी में उसका, पीएफ में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जिसका यूएन नंबर फर्स्ट टाइम जनरेट हो रहा है, जिसकी वेजेस 15,000 से ज्यादा है, तो हाँ, हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं पीएफ से। उसका पीएफ करना कंपलसरी नहीं है। बट अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो ऑलरेडी कहीं पर काम कर चुका है, उसका यूएन नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है, इवन दो उसकी वेजेस 15,000 से ज्यादा है, तब भी आपको उसका कंप्लायंसेस करना, उसको पीएफ में कवर कराना कंपलसरी रहेगा। आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते ये बोल करके कि उसकी वेजेस ज्यादा है। नहीं, वो एक्सक्लूडेड नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी पीएफ का मेंबर है, पीएफ ऑलरेडी उसका कटता है, तो आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, पीएफ में वो कंपलसरी कवरेज होगा। मैं यहाँ पर वेज में थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगा एक फॉर्मूला के माध्यम से, कि अगर हमारी यहाँ पर मान के चलें कि बेसिक 15,000 रुपए है, डीए 6,000 रुपए और रिटर्निंग अलाउंसेस मेरे 1,000 रुपीज है, मतलब मेरा टोटल यहाँ पर रेमुनरेशन जो हो रहा है 22,000 रुपए है। और 40,000 रुपए मैंने क्या किया है, उसको बोनस के रूप में या अदर अलाउंसेस के रूप में कवर कर दिया। अब मेरा टोटल यहाँ पर जो सीटीसी हो गया पर मंथ का, वो 22,000, 62,000 रुपीज हो गया। अब एज पर न्यू लेबर कोड्स, उसका 50% मेरा बेसिक डी और रिटर्निंग अलाउंसेस में होना चाहिए, दैट इज द 31,000 रुपीज। और मैं यहाँ पर रख रहा हूं अभी तक 22,000 रुपए, तो 9,000 रुपए का जो एक गेप है, ये वापस मुझे एडबैक करना पड़ेगा। और मेरा जो भी कंप्लाइंसेस होगा वो 31,000 रुपीज पर होगा, 22,000 रुपए पर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा फर्दर क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दिया वेजेस में, कि जब भी हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, इस रिस्ट्रक्चरिंग में ग्रेचुटी लिव एनकेसमेंट्स को अमाउंट को एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा 10 लाख रुपए मेरा सीटीसी है, 1 लाख या 1.25 लाख रुपए अगर मेरा ग्रेचुटी का अमाउंट और लिव एनकेसमेंट्स का अमाउंट आता है, तो उसको एक्सक्लूड करने के बाद जो अमाउंट मेरा बचेगा, उसका ही 50% मुझे बेसिक डी और रिटेनिंग अलाउंसेस में रखना है। ग्रेचुटी और लिव एनकेसमेंट्स के अमाउंट को उसमें कंसिडर नहीं करना है, एज पर क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। बाद में वो आपका उस पर चला जाएगा, और वेज आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी अकॉर्डिंगली वो 50% वाले पे होगी। यहाँ पर एक हमारा आ रहा है कि वेदर एक्चुअल वैल्यूएशंस विद 50% बेसिक ऑफ लीव एंड ग्रेचुइटीज कंप्लायंस। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर, लास्ट पॉइंट, डोंट माइंड प्लीज। हाँ, अभी मैं यहाँ पर ये चेंज बताना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ने जो फर्दर क्लेरिफाई किया गया है, कि मान लीजिए मेरा सीटीसी 10 लाख रुपए है, मैं एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए का ऑफर लेटर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर उसमें अगर ग्रेचुटी लिव एंकेसमेंट्स जो भी है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, और बाकी का जो मेरा अमाउंट बचता है, बाई मान लीजिए 9 लाख रुपए बचता है, तो 9 लाख रुपए का 50%, 4.5 लाख रुपए मुझे बेसिक डीए और रिटर्निंग अलाउंसेस में रखना कंपलसरी है। और बाकी का 4.5 लाख रुपए मैं किसी और चीज में रख सकता हूँ, बट वो भी सप्लीमेंट्री अलाउंसेस वगैरह में नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू सीलिंग लिमिट। अगर मैंने ऐसा एक्सक्लूडिंग वाले अमाउंट में ज्यादा रख दिया, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है उसको मैं वापस फर्दर एडबैक कर दूंगा। जैसे कि मेरा यहाँ फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अगर 62,000 रुपए की मैं बात करूं, तो मेरा टोटल रेमुनरेशन है, उसमें 31,000 रुपीज मेरे यहाँ पर बेसिक डीए रिटर्निंग अलाउंसेस में रखना कंपलसरी था, जबकि मैंने 22,000 रुपीज रखा। तो 9,000 रुपीज का जो डिफरेंस था, वो मैं उसको वहां पर एडबैक कर रहा हूँ वापस, और मेरा कंप्लाइंसेस वहां पर इसी अमाउंट पर होगा। यस, नाउ इट इज क्लियर। थैंक यू सर। Yes. If the salary restructure is like basic 50%, 50%, 25% in HRA, 25% in special allowances, no, बेसिक डीए और रिटर्निंग अलाउंसेस तीनों में से आप किसी में भी रखें, पर 50% अमाउंट रखना कंपलसरी है। तो बेसिक अगर हम 50% रखेंगे, चाहे वो डीए के फॉर्म में रखें या बेसिक के फॉर्म में रखें या रिटर्निंग अलाउंसेस के फॉर्म में रखें, या फिर हम उसको ब्रेक करके रखें कि 15% इसमें, 20% इसमें, 15% इसमें, 50% वो कवर कर रहा है, कर सकते हैं। और बाकी का अमाउंट, जो बाकी का 50% है एक्सक्लूडिंग अमाउंट, वो आप किसी भी उसमें रख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, एचआरए में आप रखें, कन्वेंस अलाउंसेस में आप रखें, और आप अदर कमीशन के रूप में रखें, बोनस के रूप में रखें, वो आप रख सकते हो।
बट 50% फर्स्ट जो है वो आपको बेसिक डीए और रिटर्निंग अलाउंसेज, या तो आप तीनों के रूप में रखें या तीनों को एक मर्जली आप बेसिक के रूप में रख सकते हैं। होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। एक यहाँ पर एक चीज आया कि रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स। पहले क्या होता था, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसको कैंसिल कराना, सरेंडर कराना मेरे लिए टफ होता था, इजीली डिपार्टमेंट उसको कैंसिल नहीं करता था। तो अभी यहाँ पर वो है कि अगर आपने बिजनेस सरेंडर कर दिया, बिजनेस आपका बंद हो गया, तो आपका लाइसेंस सरेंडर हो सकता है, आप प्रूफ सबमिट कीजिए। ऐसे ही वॉलेंट्री जो भी अगर कोई मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, मैंने एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो वापिस आप एग्रीमेंट कीजिए। अगर एम्प्लॉइज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं पीएफ आना है ऊपर कवर मत करो, तो वापिस आप उसको एग्रीमेंट कीजिए और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे आप उसको डिजोल्व कर सकते हो, वापिस आप रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर सकते हो। चेंजेस यहाँ पर कोई नहीं है, रेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पीएफ भी पहले 12% एम्प्लॉय का था, 12% एम्प्लॉयर का है। ईएसआईसी पहले 0.75 था एम्प्लॉय का, 3.25 एम्प्लॉयर का था, वही आगे चेंजेस वही सेम कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस ओवर अदर डेब्ट्स, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है कि इसमें क्या होगा कि अगर आप लिक्विडेशंस में जा रहे हैं, एनसीएलटी में अगर आपका केस फाइल हो रहा है, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की जो ड्यूज है, चाहे पीएफ ईएसआईसी किसी के भी ड्यूज हो, उनको प्रायोरिटीज दे दी गई है, बाकी सारे सेकेंडरी होंगे पेमेंट्स को। ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट, ये जो भी प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स पे, गवर्नमेंट एजेंसीज पर एप्लीकेबल नहीं है। सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो हमारे और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स पे कवर्ड है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स में यहाँ यहाँ पर उन्होंने जो फैसिलिटीज दे दी कि यहाँ एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में, दूसरे से तीसरे में जाता हूँ, तो मैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी उन्होंने कर दी है कि उसमें अपना ट्रांसफर कर सकता हूँ, इजीली मेरे लिए ट्रांसफरेबल है। कि एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में अगर मैं जाऊंगा, तो मेरा ऑटो ट्रांसफर, ऑटो क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारा बेनिफिट्स उन्होंने यहाँ पर कवर कर दिया है। नेक्स्ट, अगर मैं थोड़ा सा समराइज फॉर्मेट में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ताकि हम लोग फटाफट कवर कर सके और लास्ट में आपके क्वेश्चंस ले सके। सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स यहाँ पर एक्सटेंड कर दिए गए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स में। अब यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स में भी हमें 12% कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा? नहीं। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के केस में उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया कि वो एक फंड रेज करने वाले हैं, एक फंड बनाने वाले हैं। उस फंड में उस गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने जो भी चैनल है उसके थ्रू कंपनी को कितना बिजनेस उसको दिया है, उसका 1 से 2% तक कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा, और उसी से उसका सोशल सिक्योरिटी चलेगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के केस में 12% की और 4% ईएसआईसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर 1-1.5% की रेट आने वाली है। एक फंड रेज कर दिया जाएगा, उसने जितना भी कंपनी को बिजनेस दिया है उस बिजनेस का 1-2% उसको उसमें फंड में कंपनी को कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी है, और उसी से उसका सोशल सिक्योरिटी चलेगा। अब यहाँ पर मैं एक और थोड़ा सा फर्दर आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि सोशल सिक्योरिटीज की अगर मैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात करूं, जैसे हम लोग किसी को कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं, या फिर किसी अदर सोशल मीडिया ऑपरेटर्स को हायर करते हैं, अगर वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम कर रहा है, भले ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम कर रहा है, कहीं और काम नहीं कर रहा, तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, उसको आपका कंप्लाइंसेस करना, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देना कंपलसरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम सीए लोग हमारे अलग अलग क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलरली एक क्लाइंट को सर्व नहीं कर रहे, मल्टीपल क्लाइंट्स को हम सर्व कर रहे हैं, तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो हमारे केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम एक्सक्लूसिवली नहीं है, नॉन एक्सक्लूसिव अगर हम है, तो वहां पर यहाँ पर कंप्लाइंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलरली किसी एक एम्प्लॉयर को सर्व कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर उसका कंप्लाइंसेस करना, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कराना कंपलसरी है, वो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज में कवर हो जाएगा। What minimum basic salary has to be given to the graduate drawings? मिनिमम वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिफाइन करेगी उसी के हिसाब से आप लोगों को स्टेट्स को आगे उसी को कंटिन्यू करना है। एक फ्लोर रेट डिफाइन की जाएगी, उसी से आगे कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पर रेट क्या होगी ग्रेजुएट की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, उसका नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें रेट्स भी आएगी कि किसकी क्या रेट वहां पर होने वाली है, तो वो रेट अकॉर्डिंगली वहां पर आएगी। जनरली जो हम बात करें 15 से 18 हजार की बीकॉम की ग्रेजुएट की रेट आती है, वहां पर कैटेगराइजेशन होते हैं अनस्किल, स्किल, सेमी स्किल, हाई स्किल। तो फ्लोर रेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट्स को उसी को कंटिन्यू करना कंपलसरी है, तो रेट्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी।
ग्रेचुइटी का मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि परमानेंट एम्प्लॉयज के केस में सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 5 साल आपका पीरियड था, 5 साल ही ग्रेचुइटी आपकी कवर रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डेथ केस होता है, रेजिग्नेशन करते हो 5 साल के पहले, तो प्रोपोर्शनली जो भी ग्रेचुइटी बनती है वो मिल जाएगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के केस में, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के केस में यहाँ पर चेंज किया गया है। प्रोविजनिंग आपको अपनी बुक्स में करवानी है, अपने क्लाइंट्स की बुक्स में करवानी है। Q3 के फाइनेंशियल्स में, Q4 के फाइनेंशियल्स में कंपल्सरी न्यू लेबर कोड्स के प्रोविजंस के हिसाब से ग्रेचुइटी की प्रोविजनिंग होना कंपल्सरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आपको अपने फाइनेंशियल्स में उसकी रिपोर्टिंग करना कंपल्सरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ग्रेचुइटी की आप चाहें तो ट्रस्ट बना के करें, या आप चाहें तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर करें, डिपेंड्स ऑन यू, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट्स के केस में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है कि जो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स का जो मिलता था, उसको चेंज करते हुए, उसको एनहांस करते हुए 1,000 रुपीज से लेकर 3,500 रुपीज उन्होंने कर दिया। और जो केपिंग थी 20,000 रुपीज की, वो यहाँ पर नहीं रहेगी, वो केपिंग डिसकंटिन्यू उन्होंने कर दी है। कंपनीज के केस में क्या होता है, क्रेज फैसिलिटीज का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपके पास 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई है तो आपको कंपल्सरी क्रेज फैसिलिटीज देने की रिक्वायरमेंट है। मतलब वुमन एम्प्लॉयज के केस में, जो वुमन एम्प्लॉयज काम कर रही है, जो प्रेगनेंसी से निकल के आई है, जिसका बच्चा अगर छोटा है, वो केस में वो कैसे सर्व करे, तो क्रेज फैसिलिटीज का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो क्रेज फैसिलिटीज रखना कंपल्सरी अगर आपके पास 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। उन्होंने यहाँ पर उसको सिंपलाइज करते हुए ये बोल दिया है कि क्रेज फैसिलिटीज कंपनी को अपनी ओन रखना कंपल्सरी नहीं, आप पूल फैसिलिटीज उसमें रख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, किसी एनजीओ का भी हो सकता है, या किसी प्राइवेट का भी हो सकता है। आप पूल फैसिलिटीज में अपने उसमें कंपल्सरी आप कवर कर सकते हो, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हो और क्रेज फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हो। मैं जस्ट ओनली मोटे मोटे इस प्रोविजंस में आपके कवर कर रहा हूँ ताकि टाइम आपका सेव कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर ले सके। गिग ऑन प्लेटफॉर्म वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसकी क्लेरिफिकेशंस क्या होगी, तो उसके लिए रूल्स आना बाकी है। जैसे रूल्स आएंगे उसमें डिफाइन होगा कि आगे उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे डिपॉजिट होगा, उसकी क्या पॉलिसीज होगी। और वो आधार के थ्रू चलेगा, सारा रजिस्ट्रेशन जो होगा आधार के थ्रू कंपल्सरी यहाँ पे चलेगा। कंपनीज को रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना, कंप्लायंसेस करना ऑनलाइन कंपल्सरी हो गया है कि आप अपने जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करो ऑनलाइन, आपको रजिस्ट्रेशन मेंटेन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेने हैं, रिकॉर्ड सारे ऑनलाइन मेंटेन करने हैं। जो भी डिपार्टमेंट के लिटिगेशंस, असेसमेंट्स और नोटिसेज होंगे ऑनलाइन ही आएंगे, ऑनलाइन ही आपको रिप्लाई फाइल करना कंपलसरी है। तो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन वर्चुअली मोड्स पे जाने वाले हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया। एक नया चीज और यहाँ पर निकल कर आया है कि गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है कि 48 आवर्स वीकली आपको सर्व करना है। उससे ज्यादा अगर आप सर्व कर रहे हैं तो आपको ओवर टाइम वेजेस आपको देना पड़ेगा। अब ये 48 आवर्स का वीक का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें चाहे हम लोग एम्प्लॉय 4 डेज में सर्व करे, 5 डेज में सर्व करे, या 6 डेज में सर्व करे, वो कैसे भी सर्व कर सकता है। पर वीकली जो आपको सर्विंग पीरियड होगा, सर्विंग टाइम होगा जो 48 आवर्स का है, उससे ऊपर अगर एम्प्लॉय सर्व करता है तो उसको आपको ओवर टाइम देना कंपलसरी है, डबल रेट से ओवर टाइम देना पड़ेगा। मींस आपके यहाँ पर सर्विस पीरियड जो है उसको आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी आपका यहाँ पर रहेगा कि एम्प्लॉय का फ्लेक्सिबल टाइम है, कोई 10 बजे आ सकता है, 9 बजे आ सकता है, मतलब उसको 48 आवर्स वीक में सर्व करना ऐसा कंपलसरी है। और ओवर टाइम के केस में डबल रेट देना कंपलसरी है। डबल रेट से आप स्किप नहीं कर सकते वो केस में। पेमेंट जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होगा, कैश पेमेंट अलाउड नहीं होगा। सैलरी का या वेजेस का आपको जो भी पेमेंट करना है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही होगा। पहले केस डिलीवर करता था, केस पे पेमेंट होता था, वो अलाउड नहीं होगा। अगर आपने किया है तो कंसिडरेबल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट होगा। साथ में वर्किंग डेज का जो कॉन्सेप्ट था कि मैं वर्किंग डेज में सैलरी का पेमेंट करूं, अब वो भी यहाँ पर चला गया। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि यार डिजिटल मोड का जमाना है, तो आप इसमें आपके वर्किंग डेज और नॉन वर्किंग डेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता।
आप किसी भी डेज में हो, आपको सैलरी उस पर्टिकुलर डेज पे आपको सर्व करनी है या रेमिट करनी है। जैसे अगर मैं टाइम लिमिट की बात करूं, टाइम लिमिट फॉर वेजेस की यहाँ पर दे दी गई है। डेली वर्कर के केस में एट द एंड ऑफ द शिफ्ट देनी है। वीकली के केस में एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे देनी है। मंथ एंड अगर आपका है तो नेक्स्ट 7 तारीख तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। F&F की बात करूं तो T+2 डेज में आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ऐसी डेडलाइंस दे दी है, इसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पर सैलरी का पेमेंट करवाना है। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ स्टिपुलेशन दैट वेजेस टू बी पेड ऑन वर्किंग डेज, तो वर्किंग डेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। वर्किंग डेज का भी पेमेंट होगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर नहीं है। आप उसका पेमेंट किसी भी डेज में कर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपका उसमें पर्टिकुलर डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक मिनट लूंगा, क्या उसमें अलाउड होंगे और क्या एक्सक्लूड होंगे, कि आप अगर वेजेस डिफाइन कर रहे हो तो उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या आप उसमें एक्सक्लूड कर सकते हो, जैसे पीएफ और टीडीएस और पीटी डिडक्शन करना अलाउड है। कुछ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, कुछ गवर्नमेंट में जो कंट्रीब्यूशंस करना था, वो अब यहाँ पर अलाउड नहीं है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्प्लॉय का अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लिया, डिपॉजिट नहीं कराया, तो वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉय की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा का सारा डिफॉल्ट एम्प्लॉयर का माना जाएगा, एम्प्लॉय का नहीं होगा। बोनस का जो कॉन्सेप्ट था, बोनस का सेम कॉन्सेप्ट आगे भी कंटिन्यू है कि अगर आपके पास 20 और बिलो एम्प्लॉयज हैं तो आपके ऊपर अप्लाई का नहीं था। 20 और अबाव के केस में कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी बोनस की। मिनिमम जो रेट थी बोनस की 8.33% थी, वो आगे भी सेम कंटिन्यू है। अगर उस एम्प्लॉय ने मिनिमम 30 डेज आपके यहाँ पर कोई काम किया है तो वही आगे कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो रेट थी 8.33% की वही आगे कंटिन्यू है। अलोकेबल सरप्लस की कैलकुलेशंस कैसे होगी, वो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा क्लेरिफाई किया है कि अलोकेबल सरप्लस में जो हम लोग डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स और कुछ रिजर्व्स की जो हम लोग एक्सक्लूड करते थे, उनको यहाँ पर चेंजेस कर दिया है। बोनस का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि ग्रोस मार्जिन में जो आप इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, रिबेट अलाउंसेस, डेवलपमेंट रिबेट्स जो है उसके अलाउंसेस अब आपको नहीं मिलेंगे, उसका अब आपको यहाँ पर चेंजेस करना है। तो बोनस का थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पर चेंजेस होगा। टाइमलाइन जो थी पहले भी वही थी, सेम आगे भी वही टाइमलाइन है कि ईयर एंड होने के अगले 8 महीने के मतलब 30 नवंबर तक आपको बोनस पेमेंट करना कंपलसरी है। वो सेम कंटिन्यू, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पर बोला गया कि पहले इंस्पेक्टर राज जो था वो खत्म कर देते हैं हम लोग, अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर की फैसिलिटीज हम लोग देंगे कि हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ पर लूपहोल्स कर रहे हैं, कहाँ पर आपको कंप्लाइंसेस करने की रिक्वायरमेंट है, या आप इजीली कैसे उसको कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट का बोलना ये है कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया। देखते हैं वो आगे समय बताएगा कि क्या होता है। फैक्ट्रीज के केस में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया है कि अगर आप 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया, अगर आप एडो पावर पावर से आप एडो पावर्स के केस में कर रहे हैं तो 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज अगर आपके पास है तो फैक्ट्री लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। विदाउट एडो पावर के केस में वो लिमिट उन्होंने इंक्रीज करते हुए 20 से 40 कर दी गई कि विदाउट एडो पावर अगर आप जा रहे हैं तो फैक्ट्री लाइसेंस आपको 40 से एम्प्लॉय के केस में ही कंपल्सरी, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। फैमिली की डेफिनेशन उन्होंने थोड़ी सी वाइड कर दी है कि फैमिली में क्या होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सास ससुर, विडो पेरेंट्स, वो सब भी कवर हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा स्कोप यहाँ पर वाइड हो जाएगा। एक और चीज मैं यहाँ पर क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि सीएलआरए का एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस। कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, वो किसी के यहाँ पर सर्व कर रहा है, या कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसी से एम्प्लॉय हायर करता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती थी। पहले वहां पर हमारी जो लिमिट थी वो 20 एम्प्लॉयज की केस थी कि 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय अगर वो देता है तो ही उसको लाइसेंस लेना रिक्वायरमेंट था। अभी उसको चेंज करते हुए उन्होंने उसको इंक्रीज कर दिया है और बोला है कि अगर उसके पास मिनिमम 50 एम्प्लॉय है तो ही उसको सीएलआरए की रिक्वायरमेंट है। 50 से कम एम्प्लॉयज के केस में सीएलआरए की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा सीएलआरए के केस में। देन उन्होंने कवर किया है कि सीएलआरए में आईएसएमडब्ल्यू, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है, मतलब ऐसे वर्कर, जैसे कि मैं गुड़गांव की बात करूं, अगर गुड़गांव की पर्टिकुलर कोई कंपनी बिहार के एम्प्लॉयज हायर करती है या महाराष्ट्र के कोई एम्प्लॉयज हायर करती है तो वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स होंगे। तो ऐसे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स भी कवर होंगे। पहले यहाँ पर चलता था कि सीएलआरए में एवरी ईयर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा सीएलआरए लाइसेंस। अभी उन्होंने उसको बोल दिया कि नहीं,
हम आपको जो लाइसेंस देंगे 5 साल का देंगे, और उस 5 साल में अगर आपका पीरियड्स खत्म हो जाता है, आपका काम खत्म हो जाता है, तो आपको उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, रिन्यूअल करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एवरी ईयर रिन्यूअल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर इजी ऑफ बर्डन्स, इजी ऑफ डूइंग डूइंग ऑफ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने कर दिया है। तो आपका कंप्लायंसेस का बर्डन वो थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं। दूसरा उन्होंने यहाँ बोल दिया है कि अगर आपको CLRA का जो लाइसेंस हम लोग देंगे, वो पर्टिकुलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिकल लाइसेंस आप ले रहे हैं, सिविल का लाइसेंस अगर आप ले रहे हैं, तो सिविल की इलेक्ट्रिकल की डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब एम्प्लॉयर का सोचना है यार कि मेरे पास तो लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, मेरे पास तो डिग्री है ही नहीं। नहीं, डिपार्टमेंट आगे फर्दर क्लेरिफाई किया कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ऐसी है, एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस दिया जा सकता है कि हाँ ये काम पर्टिकुलर ये एम्प्लॉयर कर सकता है या ये कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है, तो आपको वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस दे दिया जाएगा। और वो वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस कोई पर्टिकुलरली वर्क के लिए एप्लीकेबल होगा, बाद में आपको वापस उस पर नया लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर का अगर कोई पेमेंट नहीं करता है, एम्प्लॉयज को पेमेंट नहीं करता है एम्प्लॉयर, तो जो भी डिपॉजिट आपकी थी, कंपनी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस डिपॉजिट को फोरफिट करते हुए उस एम्प्लॉयज को उसी से पेमेंट कर देगी। और यहाँ पर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको कंपल्सरीली पेमेंट करे। और फर्दर यहाँ पर उसको चेंज करते हुए बोल दिया गया कि यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सोशल सिक्योरिटीज में कवर हो, वेलफेयर का बेनिफिट दिया जाए या उसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो की जाए। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कंपल्सरी करना है, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने अगर कर दिया है तो कंपल्स ऐसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर से उसकी कॉस्ट रिकवर करे। अगर वो करता है तो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं करता है तो अल्टीमेट उसका ये खुद का कॉन्सेप्ट है कि वो करे या ना करे। सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि अगर आपके पास 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो आपको कंपल्सरीली आपको सेफ्टी कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर आप हजारडेस एक्टिविटीज का काम कर रहे हैं, अगर आप फैक्ट्री केयरिंग हजारडेस प्रोसेस, तो वहां पर 250 एम्प्लॉइज और उसके केस में आपको बनानी है। अगर आप बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो 250 एम्प्लॉइज के केस में हो जाएगा। और अगर आप माइंस के केस में कर रहे हैं, अगर आप माइंस का ऐसा बिजनेस है आपका, तो वहां पर वो लिमिट 100 एम्प्लॉइज की हो जाएगी कि 100 एम्प्लॉइज के केस में आपको सेफ्टी कमिटीज बनानी पड़ेगी, वो कंपल्सरी है। वीकली हॉलीडेज देना कंपल्सरी, कि आपको एक वर्किंग डे, आपको एक जो भी रहेगा वीकली एक डेज कंपल्सरी है। 6 दिन के बाद एक छुट्टी कंपल्सरी है, अब आप वो संडे रखो या कोई भी रखो, पर आपको एक वीकली हॉलीडे देना कंपल्सरी है। 6 डेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, एम्प्लॉयज को 4 डेज में 5 दिन में कंप्लीट कवर कर सकता है, 48 डेज उसको मैक्सिमम सर्व करने हैं। थोड़ा सा मैं समराइज करूंगा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस में क्या समराइज किया गया है कि पहले केवल सेक्टर स्पेसिफिक था, मतलब सारे सेक्टर कवर नहीं थे। अभी उन्होंने उसको एक्सपांड करते हुए यूनिवर्सल कर दिया गया है कि सभी एम्प्लॉय सभी एस्टेब्लिशमेंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। आपका चाहे फैक्ट्री हो, एस्टेब्लिशमेंट्स हो, सीए का प्रैक्टिस हो, सभी लोग नाउ इसमें कवर्ड हैं। वर्किंग आवर्स पहले कुछ भी होता था, किसी का 50 आवर्स है, किसी का 60 आवर्स है, कोई कितने भी काम वर्किंग आवर्स स्पेसिफिक नहीं थे, फिक्स नहीं थे। अभी उसने उसको चेंज करते हुए 48 आवर्स उसको कंपल्सरी कर दिया गया है। सेफ्टी मीजर्स पहले इतने नहीं थे, स्टैंडर्डाइज सेफ्टी सेफ्टी मीजर्स कर दिए गए कि अभी सेफ्टी करना कंपल्सरी है। वुमन एम्प्लॉयज को आप नाइट में हायर करो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रखो। वेलफेयर फैसिलिटीज सेलेक्टेड थी, अभी उसने मैंडेटरी कर दिया कि यूनिफॉर्म मिनिमम स्टैंडर्ड्स लगा दिया गया है, मिनिमम वेजेस रेट आपको देनी पड़ेगी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फोने करने पड़ेंगे, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कंपल्सरी कवर करवाना है। इंस्पेक्शंस पहले सारे फिजिकल्स और मैनुअल्स होते थे, नोटिस आपको ऑनलाइन नहीं आते थे मोस्ट प्रोबेबली, नोटिस डिलीवर नहीं हुए, बाद में डिस्प्यूट होता था कि नहीं मुझे तो नोटिस डिलीवर नहीं हुए, मैं कैसे रिप्लाई फाइल करूं। तो अभी ये उन्होंने कर दिया कि सारा जो डिजिटल मोड में चलेगा, इंस्पेक्शन और नोटिस आपको जो भी जाएंगे वो वर्चुअली जाएंगे, डिजिटल जाएंगे, आपको रिप्लाई भी डिजिटल मोड में फाइल करना है। कॉन्ट्रैक्ट और माइग्रेंट वर्कर्स सेपरेट प्रोविजंस नहीं थे, अभी यहाँ पर उनके लिए सेपरेट प्रोविजंस कर दिया गया है। इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स जो भी हैं और CLRA जो भी हैं, उनके लिए प्रोविजनिंग प्रॉपर कर दी गई है। उनकी सोशल सिक्योरिटीज कैसे कवर होगी वो उन्होंने यहाँ पर कंप्लाइंस कर दिया है। इस एक्ट को इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स कोड जो है मेजरली हम लोग के लिए काम नहीं आता आप लोगों के लिए, ये केवल रिलेशंस की बात करता है कि प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, या फिर हम लोग बात करें तो स्ट्राइक्स और कैसे प्रोटोकॉल्स कर सकती है, सेफ्टी कमिटीज क्या होंगी, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होंगे। तो इसमें जस्ट टेबल फॉर्मेट में मैं आपको समराइज करने वाला हूँ कि पहले स्टैंडिंग ऑर्डर्स
उन कंपनीज को बनाना कंपलसरी था जहां पर 100 या उससे ज्यादा है मैन पावर। अगर आपके पास 100 से ज्यादा है तो ही आप यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना सकते थे, कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर चेंज करते हुए उन्होंने इंक्रीज कर दिया गया कि नहीं, अगर आपके पास 300 प्लस मैन पावर है तो ही आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर इजी हो जाएगा। ले ऑफ के केस में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है कि पहले 100 प्लस मैन पावर के केस में ले ऑफ के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। उसको चेंज करते हुए उन्होंने 300 कर दिया है। तो इसी की वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है कि नहीं यार, अभी तो इजीली ले ऑफ हो जाएगा कंपनीज को, किसी को हायर एंड फायर करना, 300 एम्प्लॉय नहीं है तो छोटे के एस्टेब्लिशमेंट तो फटाफट से उसको निकाल सकती है। तो नहीं, यहाँ पर उसको थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, गवर्नमेंट उसको क्या फर्दर क्लेरिफाई करती है, निकल के आने वाली चीज है। स्ट्राइक नोटिस के केस में कभी भी कोई भी स्ट्राइक पे चला जाता था, कोई उसका कंपलसरी नहीं था कि नहीं उसको नोटिस देना कंपलसरी है। अभी उन्होंने उसको 40 से 60 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर आप प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट से तो आपको 40 डेज का नोटिस 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट से या पब्लिक यूटिलिटी से जुड़े हुए एस्टेब्लिशमेंट से तो आपको मिनिमम 60 दिन का नोटिस पीरियड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आप स्ट्राइक पर जा सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्राइक करना थोड़ा सा टफ कर दिया है, स्ट्राइक इजीली नहीं होगी। डिजिटल फाइलिंग पहले लिमिटेड थी कि रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट्स में अभी भी वॉलेंट्री मतलब डिजिटल नहीं है, पेपर मोड में या फिजिकल मोड में है। अभी उन्होंने उसको सबको कंपलसरी कर दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, सर्टिफिकेट्स भी आपको ऑनलाइन दिए जाएंगे और वर्चुअल मोड का कॉन्सेप्ट आ गया, फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। These are the summarize of the lower courts. Now we will take the questions of the audience. उसके पहले में कुछ स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की जो हम लोग को एज हम लोग बेच सकते हैं, हमारे एमएसएमई क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि क्या हम लोग उनके लिए बेनिफिट्स कर सकते हैं, जिनके नॉन कवरेज है वो कैसे कवर कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट की 3 स्कीम्स है। एक ईएसआईसी की थी, वो अभी चली गई है, उसका टाइम पीरियड निकल गया है तो उसमें मैं बात नहीं करूंगा। पीएफ डिपार्टमेंट की अभी भी एग्जिस्टिंग में 2 ऐसी स्कीम्स है जिसका हम लोग उनको स्कीम्स का बेनिफिट दिला सकते हैं और हमारे क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और उनके लिए रेवेन्यू, हम उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ईईसी करके एक एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम्स करके डिपार्टमेंट की एक स्कीम चल रही है कि अगर आपके यहाँ पर पीएफ एप्लीकेबल था, आपने उसका नहीं लिया, कंप्लायंसेस नहीं की, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज है 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप रजिस्ट्रेशन ले लें और कंप्लायंसेस कर दें। ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जिनका 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक एप्लीकेबल था, जिनका कंप्लायंसेस करने की रिक्वायरमेंट थी, कंप्लायंसेस नहीं किए, तो वन टाइम अपॉर्चुनिटीज हम दे रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन ले लें और कंप्लायंसेस कर दें वॉलंटरली। आप जो भी डिक्लेयर करना चाहें दैट आर द ओके, डिपार्टमेंट उसमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करेगा। दूसरी चीज इसमें उन्होंने आगे और बोला है, बेनिफिट दिया है कि अगर आपने एम्प्लॉय का कोई रिडक्शन लिया है, कोई एम्प्लॉय का पोर्शन काटा है, तो ही आपको जमा कराने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने एम्प्लॉय का पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं किया है तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन रिमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन रिमिट करो, जो भी इंटरेस्ट आता है वो रिमिट करो, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं वो लगेगा। डैमेजेस में यहाँ अगेन आपको यहाँ पर लिबलाइज कर दिया है कि डैमेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, डैमेजेस आपके ऊपर नहीं लगाएगा। वॉलंटरली आप डिक्लेयर कर सकते हो। जो भी कंपनीज अपनी बुक्स को वॉलंटरली क्लीन करना चाहते हैं, दिट इज द गुड अपॉर्चुनिटीज। हम सीए के लिए भी गुड अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम अपने क्लाइंट्स जिनके ऊपर पीएफ कंपलसरी एप्लीकेबल था, जिन्होंने कंप्लायंसेस नहीं किए और आगे जाके नोटिसेज और ऑर्डर्स के केस में हम लोग को नहीं जाना, लिटिगेशंस के केस में नहीं जाना, तो आज भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है कि हम लोग वॉलंटरली डिक्लेयर कर दें। और जो डिक्लेयर करना चाहें, अगर एम्प्लॉय का पोर्शन डिडक्ट नहीं किया है तो जो एम्प्लॉयर का पोर्शन है केवल वही हमें रेमिट करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक प्रोडक्ट हो जाएगा बेचने के लिए, आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी, चाहे एमएसएमई क्लाइंट हो, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो, नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो। एक और स्कीम्स यहाँ पर निकल आके आ रही है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करके गवर्नमेंट की अभी स्कीम चल रही है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए कि कंपनीज जो भी एग्जिस्टिंग में कंपनीज है, रजिस्टर्ड है, पीएफ में रजिस्टर्ड है, अगर उसके पास 50 से कम एम्प्लॉय हैं तो उसको 2 नए एम्प्लॉयज ऐसे ऐड करने हैं, और 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उसको 5 नए एम्प्लॉयज ऐड करने हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की पॉलिसीज है। अगर कंपनीज ऐसा करती है, न्यू एम्प्लॉयज जनरेट करती है और ऐसे एम्प्लॉय जनरेट करती है जिसकी वेजेज 1 लाख रुपए से कम है, तो गवर्नमेंट उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ का, नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में रेमिट कर दिया जाएगा, और एम्प्लॉयर का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर के बैंक अकाउंट में रेमिट कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पर ये एक बेनिफिट दिया गया है, ये स्कीम सभी ओपन है, जो एस्टेब्लिशमेंट नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट्स के केस में अगले 2 साल तक अवेलेबल है, और फैक्ट्रीज के केस में अगले 4 साल तक आपको स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा। उसमें वही एम्प्लॉय कवर्ड होगा जिसका फर्स्ट टाइम यूएन नंबर जनरेट होगा। दैट मीन्स द जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आया है हिस्ट्री में, उसी का यहाँ पर कवर होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, और कॉन्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग आपको वापस री रेमिट कर देंगे, आपको रियम्बर्स कर देंगे, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के अकाउंट में, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के अकाउंट में। तो ये भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज है एज ए सीए। आप अपने क्लाइंट्स को गाइड करो, अपने क्लाइंट्स को पिच करो कि सर आपका अगर एप्लीकेबल है तो आप ले लीजिए, आपको यहाँ पर भरना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट खुद रेमिट करेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा अगले 2 साल तक, और अगर आप फैक्ट्रीज हैं तो अगले 4 साल तक आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। नाउ मेजरली मैंने लेबर लॉ का प्लस स्कीम्स का जो भी था वो कवर कर दिया गया है। अब मैं चाहूंगा हमारे ऑडियंस के जो भी क्वेश्चंस है मैं उसका आंसर करूं। तो अगर सभी एज क्वेश्चंस की जगह अगर ऑडियो फॉर्मेट में आएंगे या वीडियो फॉर्मेट में आएंगे, दैट विल बी टू गुड फॉर मी टू इंटरेक्ट विद देम। आशा मैम, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऑडियंस के क्वेश्चंस। हेलो। Hello. या Sir, my question is that our company has got the actual valuation done as per the 50% basic, but now actual salary structure has not been changed. हम्म। View that rules have not been notified. But if any employee is resigning or retiring within this period, what should we do? We should make a payment on 50% basic, or we can go as per old basic salary. Thank हाँ, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि न्यू लेबर कोड्स आ गए हैं पर अभी डिफाइंड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि गवर्नमेंट उसको नोटिफाई नहीं कर देती। तो यहाँ पर अगर कोई भी एम्प्लॉय आपका छोड़कर चला गया है तो आपका जो ओल्ड प्रोविजनिंग था, ओल्ड जो कॉन्सेप्ट था, उसी के अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करना है। नए के हिसाब से पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेचुटी का जो प्रोविजन था 5 इयर्स का कॉन्सेप्ट, अगर उसने 5 साल सर्व किया है तो ही आपको उसको पेमेंट करना है, अदरवाइज उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल और केवल अपने बुक्स में प्रोविजनिंग करनी है, फाइनेंस की एक्चुअल पोजीशंस दिखाने के लिए कि आपका प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, आगे जाकर फ्यूचर में कॉस्ट इनकर कंपनी को होगी या नहीं होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको यहाँ पर अपने फाइनेंशियल्स में रिकॉर्डिंग करनी है। बट अगर कोई छोड़कर चला गया बिफोर इस ट्रांजिशनल पीरियड में, तो आपको नए लेबर कोड्स के हिसाब से अभी उसको पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन से आ रही कंटिन्यू है, अभी नए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? हेलो। हेलो। Thanks. Sir, Clear. क्या क्लियर यू? Yeah. Thanks. It's clear. ओके ओके। एनी अदर? sir, this is with respect to the working hours, sir. It is या mandatory that you need to work for all the 48 hours in a week, or anything that we can do the adjustments for that. नहीं, देखो यहाँ पर गवर्नमेंट जो भी देती है वो हायर साइड देती है। अगर आप बिलो करवा रहे हो एम्प्लॉय से और आपका एक सा कोई पॉलिसी है कि नहीं आपको एम्प्लॉय को 30 आवर्स ही सर्व करना है, 36 आवर्स ही सर्व करना है, वो तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, उसमें गवर्नमेंट कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। उन्होंने जो केपिंग लगाई है वो 48 आवर्स की केपिंग लगाई है कि इससे ज्यादा हार्स वो सर्व नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा हार्स अगर वो सर्व करता है तो वो ओवर टाइम वेजेस में कंसिडरेबल होगा। अगर किसी एम्प्लॉय 30 आवर्स 36 आवर्स का पॉलिसी है किसी कंपनी का, कर सकती है, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए है वो, उसमें गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। No, they can go beyond 48 hours also, sir, if it is permissible. या इट इज परमिसेबल बियॉन्ड 48 आवर्स आप जा सकते हो, पर वो केस में जितने भी हार्स आपके एक्सीड करते हैं वो ओवर टाइम हार्स आपके होंगे, और उसमें डबल रेट से आपको पेमेंट करना है। Got it, sir. That's okay. और Thank you. आपको एम्प्लॉयज की कंसेंट लेना उसमें कंपलसरी, आपका एम्प्लॉय उसमें एग्री होना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि हाँ उसने कंसेंट दी है कि वो हायर हार्स के लिए सर्व करना कंपलसरी, उसको एग्री करता है। Can that be forming part of the contractual thing, signing of the employment contract, sir? Anything like that, that should be fine. या इट्स डिपेंड, अगर आप उसको एज उसमें अपॉइंटमेंट लेटर में आपको डिस्क्राइब कर देते हो, अपॉइंटमेंट लेटर में लिख देते हो, दैट इज वेल एंड गुड कि वो एक ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा और अकॉर्डिंगली। बट अगर आपने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है फिर उसका आपको कंप्लाइंस करना, उसका पेमेंट करना, और जिस रेट से पेमेंट बनता है वो देना कंपलसरी हो जाएगा कि आपको उतना पेमेंट उसको देना ही पड़ेगा, डबल रेट्स। One of the thing that I heard it from this thing is that for the migrant employees, हम्म। that what has to be covered
whether the one-time travel or this commutation should be covered and all यस these यस things. तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के केस में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आया है। चेंजेस ये आया है कि पहले तो आईएसएमडब्ल्यू में कौन से एम्प्लॉइज कवर होंगे, जिनकी वेजेस 18,000 या उससे बिलो है, ऐसे एम्प्लॉइज इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर होंगे। उससे ऊपर के वाले कवर नहीं होंगे, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के केस में अगर कोई भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है तो जनरल प्रोविजन जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है वही ऊपर उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर अगर वो ऑफिस अपने घर से जो ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, जिस भी प्लेस पे ज्वाइन कर रहा है, और वापस यहाँ से घर जाने तक का उसका जो भी एक्सपेंस है वो कंपनी को उसको रेमिट करना पड़ेगा। टू एंड फ्रॉम का कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला है कि जब भी वो अपने घर से ड्यूटी के लिए आएगा, जो भी लोकेशन उसकी है, या वापस अपनी ड्यूटी सर्व करके जाएगा ज्वाइनिंग खत्म करके, तो वो टाइम का जो भी उसका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है वो आपको कंपनी को उसको रिएम्बर्स करना पड़ेगा। और उस टाइम की उसकी सैलरी, अगर वो लीव पीरियड पे रहता है, इस टाइम पीरियड में जो अगर वो घर चला गया, उस टाइम पीरियड की उसको सैलरी देना कंपलसरी नहीं है, आपको उसको सैलरी नहीं देना है। Is it दीज आर forming द part of the प्रोविजन। CTC, sir, or no? सर वो तो आपका डे वन में डिफाइन हो जाएगा ना। आईएसएमडब्ल्यू को अगर आप हायर कर रहे हो डे वन में ही, तो बात आपका पहले से डिफाइन हो जाएगा कि वो जब दिन ज्वाइन करेगा उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगने वाला है, या आपका जो भी वापस वो रिटर्न करेगा वो ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है, वो आपको उसको देना ही है। प्लस उसका वो तो आपको उसमें जब आप नोटिस पीरियड लिखोगे अपॉइंटमेंट लेटर में, तब आपको क्लियरली मेंशन करना है कि भाई आप जो भी लीव्स पे जाओगे या आप जब भी यहाँ हमारे यहाँ से लेफ्ट करके जाओगे, उसके बाद आपकी सैलरी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपको अगर नोटिस पीरियड में आप देते हो, दैट इज वेल एंड गुड। Thank you, sir. Yeah. How the PF contribution will be saved if a contract labor is presently employing more than 50 employees? सर यहाँ पर मैं अभी आपको सेविंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले तो एम्प्लॉयर क्या करता था कि बेसिक 20% 25% रखता था और वर्किंग आवर्स वर्किंग डेज कम करके चलता था। बट थोड़ा सा यहाँ पर डिपार्टमेंट का स्ट्रिक्टनेस हो गया है, और नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिनिमम 50% बेसिक में रखना कंपलसरी है। तो अगर बेसिक में 50% रखना कंपलसरी है, तो आपका यहाँ पर पीएफ रेमिटेंस हायर साइड ही होने वाला है, वैसे भी सब्जेक्ट टू 1800 रुपया। तो वैसे तो अब उसका चांसेस कम हो गया, बट स्टिल अगर कंपनी रिस्क लेना चाहती है तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम करे, और उस केस में वो उसका पीएफ सेव कर सकती है। बट उसमें एक रिस्क यह रहेगा कि अगर बाद में कहीं नोटिस निकल कर आता है, तो और बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक होता है, सैलरी रजिस्टर चेक होते हैं, तो वो केस में थोड़ी सी रिस्क रहेगी कि आपको बाद में असेसमेंट के टाइम पर रेमिटेंस जा सकता है। एक और था, हाउ द मनी विल बी क्रेडिटेड टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय अकाउंट। इट इज नॉट क्लियर कि किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन सा अमाउंट की आप बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो न्यू एम्प्लॉयमेंट के केस में तो बैंक अकाउंट में सैलरी का आपको पेमेंट करना है, केस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। और पीएफ पीएफ का जो भी कॉन्सेप्ट था वो तो पहले भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता था, कि आप जब भी आप पीएफ विड्रॉ करते हैं आपके बैंक अकाउंट में उसका पैसा आता था। और ईएसआईसी तो कभी मिलता ही नहीं उसका बेनिफिट, तो वो केवल मेडिकल है, आपका कोई भी इंजरी होती है या कोई भी आपको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो वो केस में बेनिफिट मिलता था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं मनी की, तो आप जो बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से शायद वो सैलरी के कॉन्सेप्ट हैं, तो वो सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी है। एनी अदर? Sir, there is a new provision for making payment before 7th of next month. तो इसमें कोई एक्सेप्शंस है कि 7th है संडे या कोई और वजह है, कुछ एक्सपायरी रीजन हो जाते हैं? नहीं सर, अभी उन्होंने बोला है कि 7 मतलब 7 तक करना कंपलसरी है। उसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट का आ रहा है कि अगर आपके पास मैन पावर स्ट्रेंथ 1000 प्लस है तो ही आपको 7 के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। 1000 से बिलो है तब 10 तक आप उसका पेमेंट कर सकते हो। और जो ड्यू डेट्स दी गई है 7 और 10 की, अगर वो संडे को भी फॉल करती है तब भी आपको पेमेंट करना है। उसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई वर्चुअल मोड का जमाना, डिजिटल मोड का जमाना है, अभी इसमें ऑनलाइन पेमेंट होना है सारा। तो संडे का क्या रेमिट, संडे का क्या रिक्वायरमेंट, आप सैटरडे को करो, और संडे को भी करते हो तो संडे को भी करना पड़ेगा। उसके केस में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। 7 तारीख मतलब 7 तारीख। होप इट इज क्लियर। या इट इज क्लियर। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई केस में, व्हाट हैपेंड दैट एक आवर कंपनी में जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं वो उनको ईयरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते जा रहे हैं, बट उनको पॉलिसी ये रख रहे हैं कि उनको नो लीव एनकैशमेंट, नो ग्रेचुटी बेनिफिट्स। सो स्टिल वी हैव टू मेक नाउ सेपरेट प्रोविजन फॉर दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। कैन यू रिपीट अगेन? My question is, our company is making two sets of employee. One is regular employees
and second is who are retiring on the attaining age of 58, but converting their employment on a yearly basis contracts without any benefit on leave encashment or gratuity. Very clear understanding in the policy as well as in their appointment letters. Now, whether we have to make provision for gratuity or leave encashment in those employees also? यस, ग्रेचुटी और लीव एनकेजमेंट्स का प्रोविजंस तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट हायर कर रहे हो, किसी एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर कर रहे हो और उसमें नोटिस पीरियड अगर आपका 12 मंथ मिनिमम 1 ईयर का कॉन्सेप्ट उसमें है, तो आपको उसका भी ग्रेचुटी का और लीव एनकेजमेंट का प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। रेगुलर एम्प्लॉयज का तो आप जो कर रहे थे, जो प्रोविजन थे वो कंटिन्यू, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 5 साल का प्रोविजन है वो कंटिन्यू है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का जो 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है, या फिर आपने उसको पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए हायर किया है जो कि आपका 1 मंथ में या 2 मंथ्स में या 6 मंथ्स में कंप्लीट होने वाला है, तो वो जो अगर वर्क का कॉन्सेप्ट है तो आपको उस पर्टिकुलर उसके टाइम के लिए आपको ग्रेचुटी का और लीव एनकेजमेंट्स का प्रोविजन करना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे थोड़ा सा लोग तोड़ निकाल के यहाँ पर निकलते जा रहे हैं कि साइडलाइन निकाली है कि हम 12 महीने का प्रोविजन ना करके, 12 महीने का एग्रीमेंट ना करके अगर हम इसको 11 मंथ ही कर देते हैं तो हम लोग उससे स्किप हो जाएंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस यही करूंगा कि हाँ, उससे स्किप तो हो सकते हैं, बट अगर इन फ्यूचर में कुछ ने कंप्लेन फाइल कर दी उस केस में कि नहीं मेरा बनता था, इन्होंने मुझे दिया नहीं जो नया एफटी के कॉन्सेप्ट में, तो फिर वहां पर थोड़ी सी आपको रिस्क हो सकती है। ओके, थैंक्स। या एनी मोर क्वेश्चंस? Cases where payment of salary can be made in case no. Now case is not allowed. You need to make all the salary payments ऑनलाइन ओनली, डिजिटल मोड, चाहे आप यूपीआई से करें, नेट बैंक से करें, नेट बैंकिंग से करें, नेफ्ट से करें, कैसे भी करें, बट आपको केस अलाउड नहीं है। अगर आपने केस पेमेंट दे दिया और डिपार्टमेंट का कल को लिटिगेशन आता है, आप उसको प्रेजेंट करते हो कि ये केस का रिकॉर्ड रहा मेरे पास, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, इन द केस ऑफ पेमेंट फॉर एम्प्लॉय हु हैज रिजाइंड, फुल एंड फाइनल पेमेंट, उसके लिए भी इन्होंने टाइमलाइन फिक्स कर दी है 3 डेज समथिंग करके। T+2 डेज का उसमें कॉन्सेप्ट आ गया है कि जिस दिन उसने रिजाइन किया उसके नेक्स्ट 2 डेज के अंदर उसको आपको पेमेंट करना है, सब्जेक्ट टू कि अगर उसने अपना नोटिस पीरियड प्रॉपर सर्व किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए प्रोविजन डाला है कि कोई भी कुछ भी कारस्तानी करके निकल के चला जाएगा, नहीं। अगर उसने प्रॉपर अपना नोटिस पीरियड सर्व किया है, कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सर्व किया है, तो अगले 2 दिन के अंदर आपको उसका पेमेंट क्लियर करना है। जो डिस्प्यूटेड केस है जिसमें कंपनीज की पॉलिसी के हिसाब से सर्व नहीं किया है, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का डिस्प्यूट है, वो एम्प्लॉय उनको मिल बैठकर सोल्व करना है। वो केस में ये जो T+2 डेज की पॉलिसी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सर, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच ना, मतलब 2 दिन के अंदर कैसे सारा डिपार्टमेंट उन्हें एनओसी लेनी है। सर यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हिट है, सबसे बड़ा वही हिट है कि कंपनी को, चलो जो एमएनसी है, कॉर्पोरेट्स है, वो तो मेंटेन करके चलती है कि मंथ की लास्ट वर्किंग डे को पेमेंट करती है, और बट जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्ट्रेक्टर्स है, उनके केस में सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंजेस है कि वो अगले T+2 डेज में कैसे पेमेंट कर दे या नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में कैसे पेमेंट कर दे। तो यहाँ पर फंड की थोड़ी सी समस्या आने वाली है। कंपनीज को अपना बजट उसी हिसाब से मैनेज करना है या फंड उसी हिसाब से रेज करना है कि वो एम्प्लॉयज को टाइमली पेमेंट कर दे, क्योंकि ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाले गए हैं थोड़े एम्प्लॉय के पॉइंट से यहाँ पर ज्यादा डाले गए हैं कि एम्प्लॉयज का सोशल सिक्योरिटी कवर का ध्यान रखा गया है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा टफ है, बट अभी डिपार्टमेंट ने डाला है। आगे सिचुएशंस क्या निकल कर आती है, उसमें फर्दर क्या क्लेरिफिकेशंस आते हैं, वो टाइम ही बताएगा सर। व्हाट अबाउट पेमेंट ऑफ बोनस इन केस बोनस पहले भी केस में अलाउड नहीं था। वो जो दिवाली बोनस होता था वो पहले दिवाली बोनस के टाइम पे हम लोग देते थे। अभी यहाँ पर अगर आप बोनस उसको दिखाना चाहते हो एज अपने सैलरी में और अगर अपने रिकॉर्ड्स में और अपने फाइनेंशियल्स में, तो आपको बोनस का पेमेंट भी आपको कंपल्सरी ऑनलाइन ही करना है, केस में अलाउड नहीं है। In case a company has outsourced the accounting job work, whether it will be considered as a contract employment। हाँ, अगर उसने एक्सक्लूसिवली आपके लिए ही काम कर रहा है, किसी मल्टीपल असाइनमेंट्स पे काम नहीं कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल माना जाएगा और वो केस में कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए। बट अगर वो नॉन एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है, मल्टीपल जगह काम कर रहा है, तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं है वहां के केस में। उसके केस में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। कैन पेमेंट ऑफ सैलरी बी मेड इन केस बिफोर 25/11/2025 डेट ऑफ नोटिफिकेशंस। भाई पहले तो आप कुछ भी करो, 25/11 नोटिफिकेशंस की जो डेट है वो तो निकल चुकी है। अगर आपने कर दिया है और आपके पास प्रॉपर उसका प्रूफ है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो डिपार्टमेंट को, दैट्स आर अलाउड।
सर बट सर हाउ कैन बी नो कि वो जो अकाउंटिंग जॉब वर्क है वो एक्सक्लूसिवली मेरे लिए कर रहा है या वो मल्टीपल, मुझे उससे कोई वो तो डिक्लेयर करके कंसर्न। देगा ना सर। आप जब उसको एम्प्लॉयमेंट में हायर, उसको कॉन्ट्रैक्ट में हायर करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट नोट उसी हिसाब का बनाना है कि वो आप एक्सक्लूसिव आपके लिए ही काम कर रहा है। कि जैसे क्या होता है कि कोई पार्ट टाइम वर्कर्स काम करते हैं कि ये 2 घंटे मेरे यहाँ आ गया, 3 घंटे तेरे यहाँ पे चला गया, जी जी 5-7 जी। जगह काम कर रहे हैं, तो हम्म, फिर वो केस में वो एप्लीकेबल नहीं। तो वो आपको जनरली जब आपको उसको हायर करोगे तो आप उसको जो लेटर्स दोगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स या फिर आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा, उसमें आपको उसको डिस्क्राइब करना है और उससे रिटर्न में कंसेंट लेनी है कि एक्सक्लूसिवली मेरे लिए काम कर रहा है कि या सबके लिए काम कर रहा है। तो उसी और के बेसिस पे डिफाइन होगा। और ये अगर एक्सक्लूसिवली मेरे लिए काम कर रहा होगा तो मुझे इसके लिए भी फिर ग्रेचुटी 1 साल के बाद देनी होगी, ऐसा कुछ हो रहेगा? यस, कंपल्सरी। थैंक यू सर। Sir, one thing, the same thing we need to comply with the security persons we are hiring for the third parties तो also, sir. वर्जन में प्रेमिसेस क्या है? सर सिक्योरिटीज के केस में, कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में तो पहले भी कंप्लायंसेस था कि उसको अपने एम्प्लॉयज का कंपल्सरी करना है। ग्रेचुटी का भी पहले उसका एप्लीकेबल था और लीव एंकेजमेंट का भी उसको पहले प्रोविजंस फॉलो करना था। बट हाँ, अभी तक लोग स्किप करते आ रहे थे, कर नहीं रहे थे। अभी यहाँ पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर डाल दी गई है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रेक्चर को हायर करते हो, एम्प्लॉयज को हायर करते हो, ग्रेचुटी का और सोशल सिक्योरिटीज का बेनिफिट्स अगर वो एम्प्लॉयज को नहीं दे रहा है, प्रोविजनिंग नहीं करा, तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हायर करेगा। तो यहाँ पर अगर उसने ग्रेचुटी नहीं दी है एम्प्लॉयज को, तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की हो जाएगी। So he will not share the terms of the things with the what he is hired by the person in turn to us. Actually, how to नहीं, distinguish all these things. अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो एमएनसी जो कॉर्पोरेट से जो गवर्नमेंट्स होती है, बिल क्लियर करने से पहले हर मंथ कंप्लायंसेस चेक करते हैं वो लोग कि आपने उसका कंप्लायंसेस किया है कि नहीं किया है, एम्प्लॉयज का डिडक्शंस किया है कि नहीं किया है, कंट्रीब्यूशन रेमिट किया है कि नहीं किया है। उसके बेसिस पे ही वो लोग बिल क्लियर करते थे। तो आगे यहाँ जाकर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस और इस चीज में होने वाला है कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, सोशल सिक्योरिटीज का बेनिफिट दिया है, ग्रेचुटी का प्रोविजनिंग किया है, तो ही आपके बिल्स क्लियर होने वाले हैं। और ये स्ट्रिक्टनेस कंपनीज को फॉलो करना रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसमें फर्दर लिटिगेशंस में नहीं जाना चाहते हैं, लाइबिलिटीज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर नहीं लाना चाहते हैं तो यस सर। So we need to take the terms of the contract what he is in turn hiring with the other third parties, including the compliance with the gratuity, PF, ESI, all these things, sir. कुछ बेसिक्स उसके कंप्लायंसेस होते हैं, लाइक मैं अगर बात करूं पीएफ, ईएसआईसी, प्रोफेशनल टैक्स अगर आपके स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल, तो लेबर वेलफेयर फंड, मिनिमम वेजेस और अभी ग्रेचुटी। ये 6 कंप्लायंसेस ऐसे हैं जिसका आपको कंपलसरी उसका लुक आउट करने का रिक्वायरमेंट है। आप चेक करें, अकॉर्डिंगली उसका बिल क्लियर करें ताकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यहाँ पर सेफ रहे। Don't mind, sir. Is it ease of doing business, sir? Do you think so? इजी ऑफ डूइंग के बिजनेस के केस में उन्होंने बोल दिया कि हम सारे रजिस्ट्रेशन मर्ज कर रहे हैं और सिंगल रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन वर्चुअल मोड पे कर रहे हैं, इंस्पेक्टर आज खत्म कर रहे हैं, तो यही इनके लिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है। बाकी अगर प्रैक्टिकली हम लोग बोले हैं तो देखो, टफ तो है कि यहाँ सैलरी टाइम पर पेमेंट करना, कंप्लायंसेस छोटे एस्टेब्लिशमेंट से करवाना, वो हमारे लिए टफ है। बट अगर हम कैसे भी करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कंप्लायंसेस मोड पे ला सकते हैं एम्प्लॉयर को समझा करके, तो सीए के लिए एक अपॉर्चुनिटीज भी है, हमारे लिए एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी है कि हम उसका मंथली कंप्लायंसेस करवाएंगे या उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज भी है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, टफ है, बट अगर किसी को कन्वर्ट करना चाहें और दिखाएं कि न्यू लेबर कोड्स में ऐसा रिक्वायरमेंट है, करना ही पड़ेगा, तो करेगा, एम्प्लॉयज करेगा। Thank you, sir. सर एक जनरल क्वेश्चन है, ये इन्होंने गवर्नमेंट ने 21 नवंबर की जो डेट चूज करी है, कोई इट वाज अ कंपल्शन सर्टन, कोई डब्ल्यूटीओ या किसी और के कंपल्शन था कि ऐसी ऑड डेट पे इसको अप्लाई करा? सर ऐसा कुछ नहीं था, ये लेबर कोड्स जो थे पहले इससे भी आ चुके हैं, 2014 और 15 में आ चुके थे, बट स्टेट्स इस पे एग्री नहीं करते थे। स्टेट्स इस पर एग्री नहीं करते थे, तो यहाँ पर अभी तक ये इम्प्लाई नहीं हो पाए थे। अभी यहाँ पर लास्ट 2019 में इनको लगभग एग्री कर लिया गया है, और अभी लास्ट जो बजट सेशन हुआ उसमें सारे स्टेट्स ने अपनी कंसेंट दे दी। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने उसी 21 नवंबर को उसको नोटिफाई किया। अब ये डेट क्यों रखी 21 नवंबर की, वो आगे 1 अप्रैल भी रख सकते थे या क्यों रख सकते थे, उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, उसको मैं फर्दर क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहूंगा। मोर क्वेश्चंस? टेक्निकली अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं कि ग्रेचुटी में कैसे होगा, पीएफ में कैसे होगा, दिखाना कैसे, डिस्क्लोजर कैसे होगा, या पीएफ एसआईसी कैसे कंप्लायंसेस करने हैं, न्यू प्रोविजंस कैसे इफेक्ट करेंगे, दे कैन आस्क, यू कैन आस्क। एनीवन? आई थिंक क्वेरीज आंसर हो गई हैं सारी। सर एक जस्ट छोटा सा क्वेश्चन है कि आज की डेट में
क्योंकि जी पीएफ और सर। ईएसआई दोनों को कवर करने के लिए एम्प्लॉई जो सैलरी है उसका बेसिक 21,000 प्लस रख रहे हैं उस केस में, टू टेक केयर ऑफ दैट इज नॉट कवर्ड बाय एसआईसी। सो इज इट राइट? मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि पहले पीएफ में कॉन्सेप्ट चलता था 15,000 रुपए का, ईएसआईसी में कॉन्सेप्ट चलता था 21,000 रुपीज का। अब हम जब वेज रिस्ट्रक्चर करेंगे, हमारी जो वेज कंसिडर होगी इन दोनों एक्ट्स में, वो 50% वाला फॉर्मूला, फर्स्ट जो 50% है वो कंसिडर होगा। वही 15,000 रुपए, वही 15,000 की लिमिट आज भी कंटिन्यू है, तो वही आगे भी रहेगी। अब 21,000 रुपीज पहले मेरा ग्रोस वेजेस कंसिडर किया जाता था ईएसआईसी के कंप्लाइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर 21,000 रुपीज मेरा वो फर्स्ट 50,000 रुपीज 50% कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ईएसआईसी का कंप्लाइंसेस बढ़ जाएगा, ईएसआईसी का कवरेज बढ़ जाएगा। 15,000 पीएफ का कॉन्सेप्ट था, वो सेम है, वो आगे भी रहेगा। बट उसमें ये है कि 15,000 रुपए वो उसके लिए है जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है, जिसका आज तक यूएन जनरेट नहीं हुआ है। जो एम्प्लॉय पहले से ऑलरेडी यूएन जनरेट कर चुका है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसका तो कितना भी वेजेज हो, मिनिमम 15,000 रुपए पर आपको रेमिटेंस करना कंपलसरी है, और वो पीएफ उसका कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? ठीक है, ओके। या एनी अदर क्वेश्चन? Is सर it इसमें possible to बोनस का get the कैलकुलेशन किस तरीके से PPT, sir? होगा? बोनस का कैलकुलेशंस में कोई चेंजेस नहीं है। बोनस की कैलकुलेशंस पहले भी सेम उसी तरीके से होती थी, मिनिमम 8.33%, मैक्सिमम 20%, सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस। वही सेम फॉर्मूला आगे भी है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने मिनिमम 30 डेज सर्व किया है तो ही उसको बोनस मिलेगा। हाँ, वही आगे कंटिन्यू है। एलोकेबल सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता था, आपका जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें कुछ एड बैक्स होते थे कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स एड होगा, वापस इनकम टैक्स लेट बैक होगा, और इनका टैक्स के प्रोविजन एड बैक होते थे। तो वो सेम सेम है। कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए हैं कि रिबेट, डेवलपमेंट रिबेट्स, कुछ अलग रिबेट्स थे, उनका अलाउंस आपको डिडक्शंस मिलता था, वो सब उन्होंने फोरगो कर दिए हैं कि वो चीज अब यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं होगी। ओनली जो आपका नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन और सर्टेन अदर एलिमेंट्स, उसके अकॉर्डिंगली बोनस कैलकुलेट होगा। अगर आपके पास अलोकेबल सरप्लस सफिशिएंट नहीं है तो मिनिमम आपको 8.33% बोनस देना है। अगर आपके पास प्रॉपर अलोकेबल सरप्लस है, बोनस में जो कैलकुलेशन होती है वो अलोकेबल सरप्लस पर होती है, तो आपको वहां पर मैक्सिमम 20% बोनस देना है। तो यहाँ सर सेम प्रोविजन। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो एक पेमेंट्स का बताया, सैलरी क्वेश्चन ये बियॉन्ड 7th और डिले इन फुल एंड फाइनल पेमेंट्स, उसमें रूल्स में कोई पेनल्टी और वायलेशन या इंटरेस्ट वगैरह मेंशन नजर नहीं आया उसमें। नहीं, उसमें वॉयलेशन है कि 10,000 रुपीज अगर आपने वॉयलेट करते हो तो 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी है। अगर आपके कोड के प्रोविजन, जनरल प्रोविजंस, जनरल पेनल्टी प्रोविजंस है उसमें कि अगर आपने कोड के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए हैं तो जो जनरल पेनल्टी क्लॉज है 10,000 रुपीज की, वो एप्लीकेबल होंगे। सर इसमें मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम वेजेस एक्ट ये नोटिफिकेशन इश्यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो जैसे दिल्ली के अंदर 24,000 समथिंग अमाउंट है, और न्यू वेजेस कोड के अंदर इन्होंने बोला है कि 50%। तो इसमें तो मैक्सिमम दिल्ली के एम्प्लॉय जो भी होंगे वो तो सर आउट ऑफ अभी जो कवरेज। मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट चलता था, स्टेट टू स्टेट चलता था कि सब कहीं पे क्या है कि बेसिक प्लस वेरिएबल अलाउंसेज और या फिर डीए या फिर अदर अलाउंसेज करके चलता था। और जो गवर्नमेंट आगे जाने, अभी ये चेंजेस होने वाला है, मिनिमम वेजेस स्टेट के हिसाब से नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर रेट डिसाइड करेगी कि 25,000, 30,000 कैटेगरी वाइज। वो जो कैटेगरी उन्होंने डिसाइड कर दी कि 20,000 होगा कि 25,000 होगा कि 30,000 अंकुश, होगा। ये लास्ट क्वेरी कर लेते हैं बिकॉज टाइम ऑलरेडी काफी हो गया है ना, ठीक है ये मैडम, लास्ट जो क्वेरी कर जिनका लेते हैं। क्वेश्चन है वो तो सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हाँ, जो भी 20,000, राइट 25,000, राइट, 30,000 हाँ की ये जो वाला रेट कर होगी, लेते हैं। वो गवर्नमेंट उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कि ये बेसिक रहेगा, डीए रहेगा और रिटर्निंग अलाउंसेस रहेगा, या उसमें वर्चुअल वेरिएबल अलाउंसेस भी कंसिडरेबल रहेगा। तो अकॉर्डिंगली स्टेट को उसी को फॉलो करना है। अब वो आगे उसको फर्दर सेग्रीगेट करे या उसी को एक्यूमुलेटली बेसिक में रखे, पर उसको उस रेट से नीचे नहीं जाना है, और जो कंप्लाइंसेस होगा वो उसी रेट्स के अकॉर्डिंग होगा, मिनिमम वेज के हिसाब से। थैंक यू सर। Any other questions? Now we are concluding this webinar. Ma'am, जस्ट एक we can लास्ट क्वेश्चन आया हुआ चैट बॉक्स में, वो ले लीजिए। कुछ वो बोनस एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन है, can we देन वी execute विल। agreement for payment of bonus based on turnover? नहीं, बोनस का तो ऐसा कोई एग्रीमेंट कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कंपनीज का अगर फर्स्ट 5 इयर्स अगर आपकी कंपनी है और अगर लॉस मेकिंग है, आपके पास अलोकेबल सरप्लस ही नहीं है, तो आपको बोनस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर आपके पास प्रॉफिट है
तो आपको कंपलसरी जो बोनस एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपको मीट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास मिनिमम 20 एम्प्लॉइज हैं तो आपको बोनस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज अगर आपके पास है तो आपको बोनस उनको देना पड़ेगा। जिसकी सैलरी 21,000 एंड बिलो है उसको आपको बोनस देना ही पड़ेगा। और आप उसका कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि मैं टर्नओवर अगर मेरा होगा, मैं अपना टर्नओवर मीट करूंगा तो मैं बोनस दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा कोई फीजिबल नहीं है। सर एक लास्ट क्वेश्चन बस, कि एक्स ग्रेशिया इज आउट ऑफ द परव्यू फ्रॉम द बोनस? या एक्स ग्रेशिया जिनको बोनस नहीं मिलता है, जो बोनस की लिमिट में फॉल नहीं करता है, 21,000 एंड अबाउ जिसकी सैलरी होती है, उनको एक्स ग्रेशिया के रूप में दिया जाता है। उनको जो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो वो एक्स ग्रेशिया होते हैं। एनी अदर? So thank you so much for enlightening us, all of us, actually, So with your thanks to knowledge and all of you everything. to give me opportunity to interact all of you on the new labor codes। वैसे तो ये जो पूरा है समझाने के लिए लगभग 3.5 आवर्स मिनिमम चाहिए। मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग को ध्यान रखने हैं वो मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं। क्वेश्चंस लेने का ट्राई किया कि आपको डाउट्स क्लियर कर दूं। ऑनलाइन वेबिनार्स में जितना हो सकता है उतना, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शंस की बात अलग होती है, सामने क्वेश्चन चलता है उसका आंसर देने की बात अलग होती है। तो मैंने पूरा ट्राई किया है। होप आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पर्सनली तो मेरे को कनेक्ट कर सकता है, मैं उसको सोल्व करके दूंगा। न्यू लेबर कोड्स में हमारे पास एक मैं फाइनल बोलना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको वेज स्ट्रक्चर रिवाइज करना है। न्यू अपॉइंटमेंट लेटर्स ड्रॉ होने हैं। कंपनी का वेज स्ट्रक्चर क्या होना है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कैसे हम उसको बेनिफिट्स दिला सकते हैं। तो हम सीए के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। हमारे जो एमएसएमई वेंडर्स हैं, हमारे एमएसएमई जो क्लाइंट्स हैं, हम उनको कंसल्ट करें, उनको पिच करें कि सर ये आपके लिए गवर्नमेंट की बेनिफिट चल रही है, स्कीम चल रही है। अभी ईएसआईसी की जा चुकी है पर पीएफ की 2 स्कीम्स अभी भी कंटिन्यू है। तो एम्प्लॉय अगर हम चाहें तो उनको पिच कर सकते हैं कि सर आप इसमें कवर कर लो, आपका रेमिटेंस हो जाएगा, फ्री में काम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे न्यू लेबर कोड्स के उनको वेबिनार देना, उनको सेमिनार्स देना, या उनकी वेज रिस्ट्रक्चरिंग कराना, या उनके अपॉइंटमेंट लेटर ड्रॉप कराना, या उनकी ग्रेचुटी की पॉलिसी कैसे होगी, लीव एंकेजमेंट कैसे ड्रॉ होगा, फाइनेंशियल्स में कैसे उसका इम्पेक्ट आएगा। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है। ये एक अपॉर्चुनिटीज है जो हम लोगों को ऑप्ट करना चाहिए, और हो सकता है ये हमारे लिए रेवेन्यू जनरेशन का एक मीडियम बने। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू गिव मी टाइम टू इंटरेक्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू अंकुशी फॉर योर वेरी एनलाइटनिंग सेशन। और थैंक यू। काफी मैं देख रही हूँ कि बहुत मैराथन राउंड भी चले हैं क्वेरीज के यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच, एंड होपफुली हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी पसंद आया होगा, एंड कुछ ना कुछ लर्निंग यहाँ से मिली होगी। क्वेरीज श्योर। काफी क्लियर हुई होंगी उनकी। तो थैंक यू सो एक मच। जनरल बेनिफिट्स के लिए हम ये एंड कर सकते हैं कि छोटा सा मेरे पास पीपीटी है, इतना बड़ा पीपीटी में नहीं दूंगा। एक शॉर्ट फॉर्मेट का पीपीटी है, हम आपके मेंबर्स के लिए बेनिफिट के लिए मैं आपको एक फॉरवर्ड कर दूंगा। आप आगे अपने कैंडिडेट्स को, अपने मेंबर्स को हाँ, डिलीवर आप कर शेयर सकते कर दीजिएगा, एंड मेरे से कनेक्ट कर लेंगे, तो आई विल शेयर इट विद द पार्टिसिपेंट्स आल्सो। So with हैं। this, I once again thanks to each of the participants and to you, Ankushi. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।